Hi, good morning. Very warm welcome to all of you all. And in today's class, we are going to complete entire English literature through important questions. Now, the thing is that what we are trying to do here is um, वी नो एग्जैक्टली हमें क्या करना है ना, हम लोगों को ये देखना है कि एग्जैक्टली क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आने वाले हैं। सबसे पहली बात तो क्या क्या चीज़ें हैं जो एज अ क्वेश्चन आ सकती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा, यहाँ पे हम लोगों को रिवाइज भी करना है। नाउ या थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑल ऑफ यू ऑल, गुड मॉर्निंग। नाउ आई हैव सीन दैट आई एम कमिंग लाइव, ओके फाइनली। सो इट वाज अ ह्यूज स्ट्रगल था, बट ठीक है। इट समहाउ हैपेंड, तो ठीक है। सो या इंग्लिश क्लास के अभी हम लोग मतलब इंग्लिश क्लास 11 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आपको एक आइडिया लग जाएगा एग्जैक्टली क्या क्या आ सकता है इसमें। बट बिफोर आई स्टार्ट, लेट मी जस्ट टेल यू दैट यू कैन ऑलवेज ज्वाइन मी ऑन Unacademy Plus. यहाँ पे you get to learn live from the comfort of your home. You get unlimited access to all the courses. You get top educators. You get exhaustive coverage of syllabus, regular doubt learning sessions, live test series, study material, answer writing sessions, mentorship and guidance, and much more. That means what you're trying to do here is, what we are trying to do here is we are providing you everything that you need to ace your academic goals, and that too with a lot of content in terms of daily practice section, weekly mock test series, live quizzes, ask a doubt feature, daily MCQ test series, subjective test series, and much more. एंड यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि सबसे ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग एंड आपको टेस्ट किया जाए, विच इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि आप सिर्फ यहाँ से पढ़ लेते हो, जैसे स्पेशल प्लस इनफैक्ट यूट्यूब से पढ़ लेते हो, ये सब कुछ यहाँ स्टोर है, बट यू डोंट नो एग्जैक्टली कि लिखना कैसे है ना इसको। सो दैट इज़ हाउ वी हेल्प यू हियर। यू वांट, इफ़ यू वांट, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन Unacademy सब iconic subscription, through Unacademy iconic subscription. So you get personal mentor, live doubt solving, weekly report, parent connect, study planner, and all the benefits of Plus. You can use my code SDC18 or SDC Live, SDC Live, that is in capitals without space, to get a 10% discount on your Plus or Iconic subscription. You can use the same code for the special class unlock. तो स्पेशल क्लासेस आप फ्री क्लासेस उन्हें आपको अनलॉक करना पड़ता है, उसके लिए आप सेम कोड अप्लाई कर सकते हो और आपकी क्लासेस अनलॉक हो जाएंगी। आज बहुत सारी इंग्लिश में स्पेशल क्लासेस हैं, सो इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन मी देयर। आई वुड रिक्वेस्ट यू, लाइक आई वुड सजेस्ट यू इनफैक्ट, कि अगर आप 11th के लिए सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो इवन 12 मंथ्स इज गुड। आई नो यू इट माइट साउंड क्रेजी, बट वॉट यू कैन डू इज यू कैन टेक 12 month सब्सक्रिप्शन फॉर 11th टुडे। You can study for 11th for as long as you want, जब तक आपके finals नहीं हैं as per your schools, and then you can continue with 12th. So in 12 months you're also studying 12th as well as 11th, so what's better than that? Alright guys, so yeah, this is Unacademy. I am Shipra Mishra and we are starting Unacademy's amazing class today, and we are going to cover a lot of good questions here. Now, hi, good morning all, good morning. Good morning, Devendra. Good morning, Harsh. Yeah, Shruti, I was struggling. I was struggling with network and this and that, I tell you, from last 10 minutes. So that's how. Hi, Ujwal. Good morning, Preeta. Good morning, Yash. Good morning, GS. Good morning, Bhanupriya. Good morning, Sujal. And good morning, Preeta. Hi, Jagriti. Hi, Kritika. Good morning, Jad boy. All right. This is great. Thank you so much for joining. और वो भी 8 बजे. Great. So let's start. So पहला question है, write a character sketch of author's grandmother using the following words: affectionate, caring, kind, benevolent, religious, and a strong woman. Now this is one of my favorite questions and you must have seen me talking about this question quite often. Now let me just tell you, जो ये वाला चैप्टर है इसमें कैरेक्टर स्केच बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। कैरेक्टर स्केच अगर आप ग्रैंड मॉम का प्रिपेयर कर लेते हो तो उससे आपको एक बार उनकी जर्नी भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो अगर इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चन भी आता है कि थ्रू आउट द चैप्टर ग्रैंड मॉम का क्या रोल था, तो इनफैक्ट वो भी आप लिख सकते हो। सो इसका आंसर आप क्या लिखोगे,
नाउ यहाँ पे आप लिख सकते हो, ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज नॉट प्रिटी बट टू दी ऑथर शी वॉज ब्यूटिफुल वुमन। रिमेंबर, जब चैप्टर में ऑथर ने बोला था कि जब वो एक आइडिया जो है कि वो यंग रही होंगी या वो प्रिटी रही होंगी, वो बहुत ज़्यादा रिवोल्टिंग था। इट वॉज हार्ड टू बिलीव दैट शी वॉज एवर यंग या फिर ब्यूटिफुल, बट शी नो के प्रिटी, बट उनको ऐसा लग रहा था कि नहीं, शी माइट नॉट बी यंग और प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल। व्हेन ही सेड दैट, खुशवंत सिंह ने जब ये चीज़ बोली, तो इसका मतलब आपको पता है क्या था? इसका मतलब था वो इनसाइड, लाइक यू नो शी वाज ब्यूटीफुल इनसाइड आउट, यू नो, वो बहुत ज़्यादा अच्छी ह्यूमन बीइंग थी। एंड ये चीज़ डेफिनेटली हमें यहाँ पे थ्रू आउट प्रूव करनी है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे? वो एक रिलीजियस लेडी थी, हमेशा प्रेयर करती रहती थी, हमेशा उनके लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते थे इनऑडिबल प्रेयर में। वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्शनेट और केयरिंग वूमन थी। यू नो शी यूज टू केयर फॉर अदर्स। यू नो इट इज अ वेरी बिग क्वालिटी जो कि एक पर्सन, एक ह्यूमन बीइंग होल्ड कर सकता है, व्हेन यू थिंक अबाउट समबडी एल्स, व्हेन यू केयर अबाउट समबडी एल्स, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट मेक्स यू ह्यूमन बीइंग, राइट? सो एग्जैक्टली इन्होंने ये बोला कि वो कॉन्स्टेंटली प्रे करती रहेंगी, वो कॉन्स्टेंटली यू नो अपनी रोजरी को के बीच को टेल करती रहेंगी। बहुत अफेक्शनेट थी, बहुत केयरिंग थी। उनका एक बहुत ही स्पेशल रिलेशनशिप था ऑथर के साथ में। वो उनको हर मॉर्निंग उठाया करती थी, उन्हें तैयार किया करती थी, उनकी स्टेशनरी पैक किया करती थी, उन्हें ब्रेकफास्ट दिया करती थी, इनफैक्ट उनके साथ स्कूल तक जाया करती थी। उनका काइंडनेस, और वो कितनी अमेजिंग थी, कितनी केयरिंग थी, कितनी अफेक्शनेट थी, वो ये केवल ऑथर तक नहीं था। इनफैक्ट थ्रू आउट द यू नो स्टोरी, पूरा चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा कि शी वॉज ऑल्सो काइंड टूवर्ड्स एनिमल्स एंड बर्ड्स। She used to prepare extra chapatis for dogs. She used to give bread crumbs to a bird. So, you know, ये शो करता है कि she was kind not only for human beings but also to you know the animals, dogs and sparrows and all of them. So even that was there. सो इसके बाद में वी हैड कि अभी एक चीज़ और है जो कि इम्पॉर्टेंट है उनके कैरेक्टर की, और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि शी वॉज ऑल्सो वेरी स्ट्रांग। वो स्ट्रांग थी एंड वो बहुत ज़्यादा मेच्योर थी। शी अंडरस्टूड, यू नो, शी अंडरस्टूड अ लॉट ऑफ थिंग्स। ऑथर का इंग्लिश स्कूल जाना, इंग्लिश स्कूल के बाद में उनका म्यूज़िक सीखना, यू नो, ये सारी चीज़ें उन्हें पसंद नहीं आ रही थी। बट इसके बाद में इसकी ये सारी चीज़ें उन्हें पसंद नहीं आ रही थी, बट फिर भी नो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, और बहुत ही आराम से एक्सेप्ट किया। शी डिडंट स्टार्ट येलिंग एट ऑथर और ऑथर्स पेरेंट्स और समथिंग। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था दैट शी हैज़ टू लिव सेपरेटली नाउ, बिकॉज ऑथर डेफिनेटली चेंज हो चुके हैं और उन्हें चेंज होना पड़ेगा। तो शी एक्सेप्टेड द चेंज, दैट इज़ वेरी बिग थिंग, बिकॉज अ लॉट ऑफ अस डू नॉट डू दैट, राइट? हम लोग चेंज ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। शी एक्सेप्टेड दैट एंड शी वॉज स्ट्रांग, बिकॉज जब उनको लग रहा था कि उनका बेस्ट फ्रेंड, बिकॉज उनका और ऑथर का रिलेशन ना बहुत अच्छा था, बहुत अलग था, तो जब उन्हें पता चला ना कि उनका बेस्ट फ्रेंड अब्रॉड जा रहा है, तब भी उन्होंने बड़ा स्ट्रेंथ शो किया। उन्होंने कोई इमोशन शो नहीं किया, बिल्कुल सेंटिमेंटल नहीं हुई, उन्हें हग किया, एक यू नो फोरहेड पे किस किया, एंड दैट्स इट। और जब ऑथर वापस आए, उन्होंने अपना खुशी एक्सप्रेस करने की कोशिश की। दैट मीन्स वो जोवियल भी थी, बहुत लाइवली भी थी, और उन्होंने खूब ऐसा ड्रम प्ले किया, होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स प्ले किया। देन शी गॉट इल, एंड यू नो दैट टाइम ऑल्सो व्हेन शी गॉट इल शी वांटेड टू प्रे। सो बेसिकली यहाँ पे हमने इनके कैरेक्टर स्केच में हमें स्टार्ट करना है कि कितना रिलीजियस वो थी, कितनी केयरिंग और अफेक्शनेट थी, कितनी स्ट्रॉन्ग लेडी वो थी, और कितनी ज़्यादा मेच्योर थी, और कितना जल्दी वो चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेती थी। इसमें आपको चैप्टर के डिफरेंट डिफरेंट इंसिडेंसेस बताने हैं। विलेज वाला इंसिडेंस बता सकते हो, इसके बाद में टर्निंग पॉइंट वाला इंसिडेंस बता सकते हो। आप बता सकते हो कि किस तरीके से उन्होंने एक्सेप्ट किया उनकी यूनिवर्सिटी और अब्रॉड को, एंड लास्टली कैसे वो उन्होंने वेलकम किया अपने बेटे को। सो यस, हाँ, विंटर्स लैंडस्केप वाला पॉइंट बिल्कुल लिख सकते हैं इसके अंदर। यस हर्ष, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड दीज नोट्स टू यू somehow. If not, you can please take a screenshot if you want, you know.
ऑलराइट, इसके बाद में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इसके अंदर आ सकता है, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि अभी ना जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं होता है, क्योंकि उसको टू द पॉइंट लिखना है एंड दैट्स इट। स्ट्रगल तब आता है जब आपसे क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं, बट उनके अंदर ना आपके पास लिखने का ज़्यादा मटेरियल नहीं होता और वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में होते हैं। सो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको आपके इंटरप्रिटेशन को देखते हैं कि आप कैसा इंटरप्रेट कर सकते हो। सो वैसा ही ये क्वेश्चन है, ग्रैंड मदर हरसेल्फ वॉज नॉट फॉर्मली एजुकेटेड बट वॉज सीरियस अबाउट ऑथर्स एजुकेशन। हाउ डज द टेक्स्ट सपोर्ट दिस? तो कैसे चैप्टर इसको सपोर्ट करेगा? नाउ लेट्स सी ये कैसे करेगा। गुड मॉर्निंग अपूर्वा, गुड मॉर्निंग साक्षी। अनिकेत बोल रहा है उस पॉइंट का मतलब बताओ। अनिकेत वो एक्चुअली जब उन्होंने ये बताया ना कि वो प्रिटी नहीं थी, वो ब्यूटीफुल थी, तब उन्होंने अपने इस थॉट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ना वो एकदम ब्यूटीफुल वाइट सेरेनिटी जैसी थी, एक बड़ा विंटर्स, बहुत स्नोई विंटर्स माउंटेन लैंडस्केप जो एकदम वाइट हो। एग्जैक्टली वैसा ही था, क्योंकि उनके बाल वाइट थे और वो हमेशा उनके ऐसे फेस पे आया करते थे। वो एक वाइट कलर के क्लोथ्स पहना करती थी और उन्हीं क्लोथ्स में और इसी तरीके से वो पूरे घर में घूमा करती थी। सो वो बता रहे थे कि वो कितनी ज़्यादा प्योर एज वेल एज कंटेंटेड थी, मतलब वो कितनी ज़्यादा प्योर और मतलब अपनी लाइफ से कितनी ज़्यादा सेटिस्फाइड थी। तो वो चीज़ शो करने के लिए उन्होंने बताया कि वो इतनी ब्यूटीफुल थी, एज इफ इतना पीसफुल, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी पीसफुल, इतनी सेटिस्फाइड, एज इफ एक लैंडस्केप हो, विंटर्स लैंडस्केप हो। गुड मॉर्निंग सौम्या, गुड मॉर्निंग केशव। ऑलराइट, सो अभी यहाँ पे हमें बताना है कि ग्रैंड मदर खुद नहीं पढ़ी हुई थी, बट वो बहुत सीरियस थी ऑथर के एजुकेशन के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट तो इसको ये सपोर्ट करता है कि ऑथर को वो स्कूल ले जाया करती थी। सो ऑथर को स्कूल ले जाया करती थी, उनके साथ बैठा करती थी। ऑथर जब तक पढ़ रहे होते थे तब तक वो खुद अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ा करती थी। तो शी वॉज वेरी सीरियस कि उनका बेटा जो है वो उनका जो ग्रैंडसन है वो पढ़े। उन्हें पता था कि कभी भी एजुकेशन को वो हैम्पर नहीं करना चाहेंगी अपने ग्रैंडसन की। तो वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उन्हें उठाती थी, उन्हें तैयार करती थी, उनकी स्टेशनरी इकट्ठा करती थी, उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाती थी, उन्हें स्कूल तक ले जाती थी, वहाँ पे उनको जब तक वो पढ़ रहे होते थे अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। एंड यहाँ पे केवल ये चीज़, उनका ये जो रोल था, ये विलेज में ही नहीं था, ये रोल आगे भी एक्सटेंड हुआ सिटी तक भी, है ना। बट दिक्कत ये हुई कि वो अकम्पनी नहीं कर पाई उनको स्कूल में, क्योंकि वो स्कूल बस से जाया करते थे, इंग्लिश स्कूल में जाया करते थे, उनको साइंस पढ़ाई जाती थी। ये सारी चीज़ें ग्रैंड मॉम को नहीं समझ में आती थी, बट उसके बाद भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इसको। उनके दिमाग में हमेशा ये क्वेश्चन था कि इंग्लिश स्कूल में गॉड के बारे में, स्क्रिप्चर्स के बारे में, मॉरल साइंसेस के बारे में क्यों नहीं पढ़ाते हैं। बट ये चीज़ भी उन्होंने ऐसा अपना एक्सप्रेस नहीं किया इतना ज़्यादा। एंड शी वॉज पता नहीं, वो बहुत डिसरप्टेड थी, बहुत ज़्यादा अजीब सा फील कर रही थी, सैड थी इस चीज़ को लेके कि उन्हें म्यूज़िक सिखाया जा रहा है। बट फिर भी उन्होंने कोई बात नहीं, उन्होंने उनको बोला कि ठीक है, मतलब कुछ बोला नहीं, बट उन्होंने कुछ रोका नहीं उनको। दैट मीन्स वो ना बहुत सीरियस थी उनकी एजुकेशन को लेके, वो चेंज एक्सेप्ट करना जानती थी और उन्हें पता था कि ऑथर को क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट है। वो समझती थी कि अभी उनके जो ग्रैंडसन है उनका पढ़ना ज़रूरी है, नो मैटर वो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं और स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है। तो शी सपोर्टेड ऑथर जब वो विलेज में थी उनके साथ जाके। एंड शी सपोर्टेड ऑथर क्वाइटली जब वो सिटी में आई, जबकि उन्हें कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही थी, फिर भी थ्रू आउट हिज एजुकेशन। फिर यूनिवर्सिटी, अब्रॉड, इन सब में उन्होंने सपोर्ट किया। कहीं पे भी उन्होंने एक बार भी ये शो नहीं किया कि नहीं, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए वो खुद फॉर्मली एजुकेटेड नहीं थी, बट वो चाहती थी कि उनका ग्रैंडसन बहुत ही अच्छा एजुकेशन ले। Gradually, the author and grandmother saw less of each other, and their friendship was broken. Was the distancing deliberate or due to demands of situation? Now, let me tell you, sometimes our relationship changes. हम expect करते हैं कि whatever that's going to happen, it's going to say या फिर जैसा भी हमारा relation, it's going to stay intact हमेशा। यहाँ पे दोनों का रिलेशन चेंज हुआ था। ऑथर का और ग्रैंड मॉम का रिलेशन विलेज से अगर हम देखें तो वहां से लेके सिटी तक तो बहुत ज्यादा चेंजेस उसके
अंदर आए थे। बट ये दोनों के रिलेशन में, इन दोनों के रिलेशन में ये जो चेंजेस थे, ये चेंजेस डेलिबरेट थे, जानबूझ के वो लेके आए थे, या फिर सिचुएशन की वजह से थे। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये चेंजेस सिचुएशन की वजह से होते हैं, एंड दैट वाज द केस विद ग्रैंड मॉम एंड ऑथर। क्योंकि जब वो एक छोटे बच्चे थे तब वो अपने ग्रैंड मॉम के साथ रहते थे, उनके पेरेंट्स उन्हें छोड़ के चले गए थे सिटी, तो ग्रैंड मॉम ने उन्हें उनके पेरेंट्स के जैसे संभाला, एक बेस्ट फ्रेंड के जैसे संभाला, उन्हें सपोर्ट किया उनकी एजुकेशन में, उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई, बी इट प्रेयर, अब जो भी उनको स्कूल तक अकम्पनी किया, उन्हें रेडी करती थी, खिलाती थी, उनका ध्यान रखती थी। वो तब था जब वो एक छोटे बच्चे थे। अब ऑब्वियसली ऑथर हमेशा उतने नहीं रहने वाले थे, चेंजेस आने वाले थे, और ये चीज़ ग्रैंड मॉम भी जानती थी। स्लोली एंड ग्रेजुअली उन्होंने अपने आप को रेडी कर लिया इस चीज़ के लिए जब उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया। और उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या था? उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था जब उन्हें सिटी बुलाया गया। जब उन्हें सिटी बुलाया गया तो ऑथर इंग्लिश स्कूल में जाने लगे, डिस्टेंस हो गया, क्योंकि पहले वो उनको स्कूल छोड़ा करती थी, अब वो उनको स्कूल छोड़ के नहीं जा सकती थी, तो वो डिस्टेंस दोनों के बीच में आ गया। इसके बाद में वो इंग्लिश स्कूल में जाने लगे, साइंसेस के बारे में पढ़ने लगे, अगेन इसके बारे में वो नहीं जानती थी तो वो उन्हें पढ़ा नहीं सकती थी। इसके बाद में जब वो यूनिवर्सिटी गए तो यूनिवर्सिटी की वजह से उनको उनका अलग से रूम दे दिया गया, तो एक कॉमन लिंक जो था, जो एक रूम वो साथ में शेयर करते थे, वो भी चला गया। यूनिवर्सिटी के बाद में फाइनली जब वो अब्रॉड गए तो वो 5 साल के लिए देश ही छोड़ के चले गए, तो इनफैक्ट वो भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ग्रैंड मॉम सेंटिमेंटल नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उन्होंने चेंजेस को एक्सेप्ट कर लिया था अपने रिलेशनशिप में। बट ये सारे चेंजेस जो थे, ये सारे चेंजेस आए थे ड्यू टू द सिचुएशन, नॉट डेलिबरेटली। दोनों अभी भी एक दूसरे को उतना ही पसंद करते थे, उतने ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स थे, बट सिचुएशंस ऐसी थी कि वो कॉमन लिंक जो था वो स्नैप होता गया। और स्पेशली जो चीज़ें ऑथर करते थे, बी इट म्यूज़िक, साइंस के बारे में पढ़ना, ये ग्रैंड मॉम को पसंद नहीं आता था। वो नहीं चाहती थी कि वो अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू उन्हें बताए, इसीलिए शी ऑलवेज डॉज्ड इट, एंड उन्होंने अपना सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया था। ऑल राइट, सो ये 3 तरीके के क्वेश्चंस हैं मेजरली जो आपको हेल्प करेंगे पूरा चैप्टर कवर करने के लिए। पूरा चैप्टर कवर हो गया हमारा, चैप्टर नंबर 1। एंड हाय अमन, हाय आचल, हाय सुख, हाय रति, हाय रव्या। I'm coming on special. Yes, I am. Today we have a lot of special classes. You might not see them today, abhi, but you can see it later. So we have a lot of special classes today. Please join क्योंकि आज बहुत सारे chapters हम लोगों को complete करने हैं, right? और आपको पता है कि आपको कोड यूज़ कर लेना है SDC लाइव या SDC 18, उससे अनलॉक हो जाएगा ना फ्री वाला क्लास, नहीं तो वो लॉक रहेगा। हाय समन्विता। ऑल राइट, नाउ ये क्वेश्चन बोलता है द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर, आई एम सॉरी। अच्छा, यू आर अभिषेक क्या? ऑल राइट। Impending disaster came about 6 p.m. What was the warning? Now ये चैप्टर के साथ में एक प्रॉब्लम है, सुनो। हाय निकी। सो इस चैप्टर के साथ ना एक प्रॉब्लम है, और वो चैप्टर के साथ में प्रॉब्लम ये है कि ना ये इसके अंदर क्वेश्चंस आएंगे डेट के बेसिस पे, हो सकता है टाइम के बेसिस पे। तो अगर आपने डेट्स नहीं देखी हैं, आपने टाइम्स नहीं, आपको नहीं पता है कि कौन सी डेट को कौन से टाइम पे क्या हुआ था, देन गया। क्योंकि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको पूछा जाए एग्जैक्टली कि क्या क्वेश्चन पूछना चाहता है, वो हो सकता है डेट या टाइम के लिए पूछे। जैसे इसमें कि पहला इंडिकेशन जो था इम्पेंडिंग डिजास्टर का, वो 6 बजे आया था। तो बोला पहला डिजास्टर का वार्निंग 6 बजे आया था, तो ये वार्निंग क्या था? अब आपको देखना पड़ेगा वो 6 बजे वाला वार्निंग क्या था, राइट? सो ऐसा, सो अभी द फर्स्ट वार्निंग ऑफ अप्रोचिंग डिजास्टर वाज थ्रेटनिंग स्टिलनेस। The wind dropped, the sky grew dark. Now what happened was एकदम से ना बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलने लगी थी, waves उठने लगी थी। अभी एक recently like थोड़ा सा ये हुआ था, and they were like कि ठीक है, this is happening। थोड़ी देर में 6 बजे के आसपास वो विंड्स एकदम से ड्रॉप हो गई थी, स्काई एकदम से डार्क हो गया था, एंड एक अजीब सा रोर उन्हें फील हो रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि पूरा ना शिप उनकी तरफ पूरा ना सी उनकी तरफ आ रहा है, पूरा सी रोल करते हुए उनकी तरफ आ रहा है। सो अभी जब उन्होंने देखा कि एग्जैक्टली व्हाट वाज हैपनिंग,
तो उन्हें दिखा देयर वॉज अ वेव, and that wave was not any ordinary wave. That wave was almost twice the height of the other waves. So whatever waves that were coming, वो waves जो थी वो कुछ नहीं था. अभी जो wave था पूरा vertical, and that too twice the height of other waves. That means it could cover the entire ship or boat. So that was something that was like, oh my god, how are we going to deal with it. बट ऑथर ने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, नरेटर ने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, आई माइट एज वेल ड्राइव थ्रू इट. बोला शायद हो सकता है मैं इसमें से निकल जाऊं. एंड उन्होंने वो ट्राई किया, और जैसे ही उन्होंने उसको ट्राई किया उनका वो जो वेव था उनके बोट से जाके एकदम से एक्सप्लोड हो गया. एक्सप्लोजन हुआ. एक्सप्लोजन इतना ज्यादा हो गया, इतना खतरनाक एक्सप्लोजन था कि ऐसा लगा कि इट वाज पता नहीं कुछ बचेगा नहीं और शिप पूरा टूट गया है. एंड यहाँ पे नरेटर का सर जाके व्हील पे लगा, वो बाहर एकदम फिक गए, बाहर चले गए. पानी एकदम पूरा अंदर आ चुका था, और नरेटर को लगा कि अब तो वो डेफिनेटली मरने वाले हैं और अभी कुछ नहीं बचा है उनके पास में. तो वो धीरे धीरे जब वो एकदम अनकॉन्शियस हो रहे थे, देन ही वाज लाइक कि मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, अब हाँ, अब मैं नहीं जी पाऊंगा. बट जैसे ही वो उठे, उन्होंने रियलाइज किया कि उनके सामने वेव वॉकर है, और वेव वॉकर बहुत मिजरेबल कंडीशन में है और उन्हें उसे डूबने से बचाना है. उन्होंने स्विम किया, वेव वॉकर में गए, आधा क्रॉल किया, आधा स्विम किया, डेक तक पहुंचे, व्हील संभाला. अब उन्हें पता था कि नीचे पानी है, बट वो व्हील छोड़ के जा नहीं पा रहे थे. एंड दैट इज वाई उनको ऐसा लग रहा था कि यार कुछ तो ऐसा हो मैं जाऊं. और मैरी आ गई, मैरी को उन्होंने व्हील संभलाया. जब वो नीचे गए तब उन्हें रियलाइज हुआ कि पानी बहुत ज्यादा भर चुका था, एंड अभी उन्हें कुछ क्विक एडजस्टमेंट्स करने थे, कुछ क्विक रिपेयर्स करने थे. एंड ही स्टार्टेड रिपेयरिंग फॉर देम. सो ये हुआ था 6 बजे के बाद में. एंड एवर सिंस वो दिन आया, उसके बाद में उन्होंने सिर्फ एक ही चीज की थी, विच वॉज पंपिंग. वो पंपिंग करे ही जा रहे थे, करे जा रहे थे, पानी को निकाले जा रहे थे. सो दैट्स हाउ इट वॉज. और ये 6 बजे वाला था. सो 6 बजे का डिजास्टर का जो सिग्नल था वो यही था. How did they deal with water that had gushed into the ship? पानी जो कि ऑलरेडी आ चुका था शिप में, उसके साथ उन्होंने कैसे डील किया. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मैरी टुक कंट्रोल ऑफ द व्हील, नरेटर मेड हिज वे टुवर्ड्स द हैच. वो हैच के टुवर्ड्स गए, उन्होंने देखा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्या मैं कर सकता हूँ. तो इससे पहले कि वो ये चीज़ समझ पाते, उन्हें दिख गया था कि पानी बहुत ज़्यादा आ चुका है एंड अभी उन्हें बहुत रिपेयर्स करने बाकी हैं. लैरी और हर्ब जो थे वो मैडमैन के जैसे पंप कर रहे थे बेचारे, पानी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे. उन्हें देखने को मिले ब्रोकन टिम्बर, स्टारबोर्ड साइड बाल्ज हो गई थी, क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट, टिन, टॉयज सब कुछ पानी में जा चुका था. वो कैसे जैसे अपने बच्चों के केबिन में गए, कुछ स्क्रूज, कुछ हामर, कुछ कैनवस, ये सब कुछ लेके आए. कैनवस को स्ट्रेच किया, थोड़े से रिपेयर किए, बट अभी भी पानी आ रहा था. प्रॉब्लम तब हो गई जब हैंड पंप्स भी ब्लॉक हो गए, क्योंकि डेब्रिस जो था सब कुछ आ गया था. जो भी चीजें फ्लोट कर रही थी ना, वो सारी चीजें जाके पंप में चली गई थी. एंड दैट्स वाई जो पंप था वो टूट गए थे, वो भी खराब हो गए थे. इलेक्ट्रिक पंप जो था शॉर्ट सर्किट हो गया था. वाटर लेवल और ज्यादा बढ़े जा रहा था. इसीलिए वो गए, उन्होंने देखा तो उनको डेक में 2 स्पेयर हैंड पंप्स मिले और एक इलेक्ट्रिक पंप मिला. सारे एडजस्टमेंट्स करके एंड फाइनली उन्होंने उसको सेट किया. एंड द गुड न्यूज वाज कि वो वर्क किया. फिर ऑलमोस्ट 15 आवर्स तक उन्होंने कंटिन्यूस पंपिंग किया, पानी को बाहर निकालने की कोशिश की. पानी उसके बाद में थोड़ा सा कंट्रोल में आ गया था, तो अब वो 2-2 घंटे के ब्रेक में वो चीज़ कर पा रहे थे. एंड जब से ये चीज़ हुई थी, देवर जो वो कर रहे थे वो सिर्फ पंपिंग था. यहाँ से ऑथर को पता चल गया था, नरेटर को पता चल गया था कि अभी वो ऑस्ट्रेलिया तक तो बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे एंड उन्हें कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा. दैट्स हाउ ही स्टार्टेड फाइंडिंग द आइलैंड. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वर दे डेस्परेट टू लुक फॉर एन आइलैंड. वो इसीलिए डेस्परेट थे क्योंकि उन्हें पता था कि वो 15 घंटे सर्वाइव कर चुके हैं जब से वेव ने हिट किया है. उन्हें पता था कि वेव वॉकर इतना ज़्यादा नहीं कंट्रोल कर पाएगा, इतना ज़्यादा नहीं टिक पाएगा कि वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाए. इसीलिए उन्होंने चार्ट चेक किए, सारा चीज़ें चेक किया और उन्हें पता चला कि यहाँ पे आसपास 2 आइलैंड है. वन ऑफ देम जो कि था एम्स्टरडम, ये जो था ये एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस था और उन्हें लगा कि ये बेस्ट रहेगा क्योंकि ये सबसे पास है. सो दे स्टार्टेड कि ठीक है ऐसा हम लोग कर सकते हैं.
सारी चीज़ें देखने के बाद में उन्होंने लैरी को एक इंस्ट्रक्शन दिया और बोला कि तुम्हें 185 डिग्रीज में स्टर करना है। अगर सब कुछ सही रहा तो हम लोग 5 बजे तक इस आइलैंड पे पहुंच पाएंगे। बट वो ये कहकर और सो गए, ये कहकर सो गए बिकॉज उन्हें पता चल गया था कि अब जो होगा ना ये लास्ट है, इसके अलावा अब कुछ नहीं हो सकता, हमें कोई नहीं सेव कर सकता। जब वो उठे तब 6 बज चुके थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने आइलैंड मिस कर दिया है एंड अब कुछ नहीं हो सकता, वो टर्न लेके वापस भी नहीं जा सकते हैं। तो अभी इतने में उनके बच्चे आते हैं और वो उन्हें हक करते हैं और बोलते हैं कि वो वर्ल्ड के बेस्ट पापा है एंड वर्ल्ड के बेस्ट कैप्टन है। और जब वो उनसे पूछते हैं कि क्यों, तो वो बताते हैं कि हमारे सामने है आइलैंड एंड या सो दैट्स हाउ दे सेव देमसेल्व्स, यू नो। सो ये था हमारा लेसन नंबर 2। इसमें भी हमने पूरा जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट कवर किया। इस तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। नाउ वी हैव लॉट ऑफ न्यू कमर्स हियर। हाय दारिया, हाय तनिष्का, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंजलि, आई एम फाइन, हाउ आर यू? हाय आस्था, आई एम फाइन, हाउ आर यू? Thank you guys, thank you so much for joining. नाउ अभी हमको ये कार्टर वाला चैप्टर करना है। कार्टर वाला चैप्टर इज ट्यूट। गुड मॉर्निंग रानी। सो अभी यहाँ पे इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। इसमें 3 टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। पहला टॉपिक कौन सा है? गुड मॉर्निंग यमन, गुड मॉर्निंग सुधा, हाय अमन। आज स्पेशल क्लास है? हाँ, आज स्पेशल क्लासेस हैं। आज स्पेशल क्लासेस हैं, अभी आपको नहीं दिखेंगी शायद, मैं आपको थोड़ी देर में चेक करना, आपको सारे मिल जाएंगे। अच्छा मेरी बात सुनो, इसमें ना 3 चैप्टर्स 3 टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं। अगर ये 3 टॉपिक्स कर लोगे ना, ट्यूट वाला चैप्टर पूरा अच्छे से हो जाएगा। एक तो कार्टर, हार्वर्ड कार्टर वाला टॉपिक, एक जाही हवास वाला, ये जो सिटी स्कैन अभी करंटली हो रहा था, और तीसरा जो हमारा ये ट्यूट का हिस्ट्री जो था। ये 3 टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं, क्योंकि इन्हीं में से आएगा आपका जो मेजर क्वेश्चन है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा। हाँ दी, वो क्वेश्चन आए थे एग्जाम में जो आप बताए थे। हाँ, थैंक यू आस्था। हाय वर्सटाइल आरजे, हाय करण, गुड मॉर्निंग धारिया। इसका पीडीएफ मिलेगा, मैं ट्राई तो करूंगी अरेंज करने का आपके लिए। मतलब मैं कैसे आप तक पहुंचाऊं इसको, कोशिश तो करूंगी पूरी। ऑल राइट, सो अभी यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है। मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920s। ये किसने बोला था? ये हमने एमसीक्यूज में भी किया था। ये एक्चुअली जाही हवास ने बोला था। जाही हवास के अकॉर्डिंग ये था कि कार्टर ने 1920s में जो किया था उसकी वजह से मम्मी बहुत बुरी कंडीशन में थी। क्वेश्चन ये आता है कि कार्टर ने किया क्या था। नाउ दैट इज समथिंग जो कि इंपॉर्टेंट है। वाओ, थैंक यू सो मच शीतल, थैंक यू सो मच। आज आपका इवनिंग में ट्यूट का टेस्ट है। वाओ, यू नेल इट। सो यहाँ पे बोला कि हार्वर्ड कार्टर कौन थे? ये ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1922 में ट्यूट के टूम को डिस्कवर किया था। उन्होंने कोशिश किया कि वो उसके कंटेंट्स को देखें। ऑल राइट वर्सटाइल आरजे, ऑन इट। फिर उन्होंने देखा कि जब उन्होंने सर्च किया तो उन्हें ट्यूम मिला और उन्होंने देखा कि वो 3 नेस्टेड कॉफिन्स में था ना। 3 नेस्टेड कॉफिन्स में था। वहाँ पर उन्होंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखी थी। यहाँ पे ना बहुत सारा गोल्ड के आर्टिफैक्ट्स थे। बहुत सेंसेशन भी था अंदर, बिकॉज ऑब्वियसली ये इतने पुराना टूम था। और कितने पुराना टूम था ये? 3,300 years old. Tute almost died, 3,300 years ago. So it was all interesting, बहुत interesting था, बहुत ज़्यादा fascinating था. We have a lot of comments here. Thank you, Daria. Hi, DY. Hi, good morning. Karan, I will give you suggestions, but not in this class, bacha. Let me just complete what I have started, please. So यहाँ पे जब उन्होंने देखा सारी चीज़ें, 3 नेस्टेड कॉफिन्स को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले कॉफिन में वो गए तो उन्हें दिखा कि एक श्राउड था। श्राउड का मतलब होता है कफन, और उसके ऊपर ना बहुत सारे ऐसे गार्लैंड्स थे, बहुत सारे फूल वगैरह पड़े हुए थे, जो ये शो करते थे कि वो मार्च या अप्रैल में उनकी डेथ हुई होगी, क्योंकि वो सारे फूल और वो सारी चीज़ें उसी टाइम पे उगती हैं। इसके बाद में वो जैसे ही ट्यूट के टूम तक पहुंचे, उन्होंने रियलाइज किया कि रिचुअल रीजंस जो हैं, तो एक्चुअली ना यहाँ पे क्या होता है मैं आपको बताती हूँ।
यहाँ पे जब इनको ममीफाई किया जाता है, जब इन्हें दफनाया जाता है, तो इनके साथ में रेजिन्स दफनाई जाती है ना। रेजिन्स आर नॉट किशमिश बट डेफिनेटली समथिंग लाइक इट, तो चिपचिपा सब्सटेंस होता है, उसके साथ में दफनाया जाता है। अब वो जो रिचुअल रेजिन्स थे जो 3300 साल पहले जिनके साथ ट्यूट को दफनाया गया था, वो ऑब्वियसली अभी तक हार्डन हो चुके थे, बहुत ज्यादा टफ हो चुके थे। एंड ये रीजन था कि ट्यूट का बॉडी जो है, जो कॉफिन था उसके ऊपर अटैच हो गया था, एकदम चिपक गया था और वो निकल नहीं रहा था। ट्यूट का बॉडी को निकालने के लिए कार्टर ने ट्यूट के बॉडी को 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट में सन में रख दिया, बाहर धूप में रख दिया 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट में, सो दैट वो धूप से पिघल जाए और वो ट्यूट के बॉडी को हटा दे। अभी डेफिनेटली वो भी वर्क नहीं किया। कार्टर को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता था कि जितना सारी चीज़ें गोल्ड और ये सब कुछ जिसके साथ ट्यूट को दफनाया गया है, कोई भी चोर आता होगा, क्योंकि अभी तक ट्यूट का टूम नहीं मिला था और अब क्योंकि मिल गया है, कोई भी चोर आ जाएगा, गार्ड को पता ही नहीं चलेगा और वो अंदर आके ट्यूट की बॉडी को खराब कर जाएंगे केवल गोल्ड और इन सारी चीज़ों के लिए। अभी आर्कियोलॉजी चेंज हो गई थी। कार्टर गोल्ड के लिए नहीं आए थे वहां पे, कार्टर ये जानने के लिए आए थे कि एग्जैक्टली टूम को हुआ क्या था, ट्यूट को हुआ क्या था और ट्यूट मरे कब थे। एंड ये रीजन था कि उन्हें ट्यूट की बॉडी को बचाना था। उन्होंने पूरा बॉडी जो है उसको चिजेल और हामर से एकदम से क्या किया, पूरा अलग कर लिया हेड से, फिर लिम बाय लिम उन्होंने सारा जो जॉइंट सब कुछ जो था ट्यूट की बॉडी का, वो एक वुडन बॉक्स में डाल दिया और उस वुडन बॉक्स में डालकर उसको अलग से रख दिया, ताकि अगर बाई चांस चोर आते भी हैं और कुछ होता भी है, ट्यूट की बॉडी सेफ है। ये चीज उन्होंने कोशिश किया। और यहाँ पे अभी ये जो नया वाला ट्यूट था, नया वाला ट्यूट का घर था, वही ट्यूट का घर है जिसमें वो आज तक रिसाइड करते हैं। तो ट्यूट को जो 3300 साल पहले जिस बॉक्स में दफनाया गया था, जितनी सारी चीज़ों के साथ दफनाया गया था, वो अब नहीं रहा। अब वो एक वुडन बॉक्स में है और वहाँ पर वो सोते हैं। सो ये जो है, ये डेफिनेटली कार्टर ने किया था। कार्टर ने जब ट्यूट की बॉडी को ऐसा 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 ठोक ठोक के निकाला ना, तो उसकी वजह से ट्यूट की बॉडी पे बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचा था। और इसी डैमेज की बात जाही हवास कर रहे थे इस क्वेश्चन में, ये लाइन जब उन्होंने बोली तब। ओके, wow, versatile RJ, that means a lot. Thank you so much. Thank you. Exactly. All right. Good morning, Saksham. Hi. Okay. Next question. Describe the changing attitude of archaeologists over a span of time. Now, let me just tell you. Earlier, लोग क्या करा करते थे? लोग ट्रेजर के पीछे और इन सारी चीज़ों के पीछे आर्कियोलॉजी को मोल्ड किया करते थे, या आर्कियोलॉजी वाज ऑल अबाउट ट्रेजर एंड ऑल दिस थिंग। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये थोड़ा सा चेंज हो गया। नाउ पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रेजर्स बट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड डेथ। सो इसके लिए लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं अभी। इट ऑल्सो यूजेस मोर सोफेस्टिकेटेड टूल्स। नाउ पहले डेफिनेटली ये टूल्स अवेलेबल नहीं थे, अभी ये सोफेस्टिकेटेड टूल्स एक्सेप्ट मतलब यूज करने लगे हैं। अगर देखिए 1968 में, कुछ 40 साल बाद ऑलमोस्ट, जब कार्टर ने डिस्कवर किया था ट्यूट की बॉडी को, तो एक एनाटॉमी प्रोफेसर थे जिन्होंने ट्यूट की बॉडी को एक्सरे किया था और उन्होंने ये बताया था कि उनकी ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रिब्स जो है वो मिसिंग है। और आज के टाइम की अगर हम बात करते हैं जाही आवाज की, तो वो जाही आवाज क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ट्यूट की बॉडी को सिटी स्कैन के लिए लेके जाने वाले हैं, जिसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज होने वाले हैं। और उसके थ्रू वो ये फाइंड आउट करेंगे कि एग्जैक्टली क्या है, क्या रीजंस होंगे जिसकी वजह से ट्यूट की डेथ हुई होगी, या ट्यूट की जब डेथ हुई होगी तो वो कितने साल के होंगे। सो दैट इज हाउ आर्कियोलॉजी हैज चेंज। अर्लियर इट वाज all about treasure and stuff, and now it has changed to knowing the mysteries and intriguing facts about life and death. स्पेशल क्लासेस की टाइमिंग बता दो। यमन, मुझे अन अकेडमी पे फॉलो कर लो, क्योंकि मुझे खुद को अभी आइडिया नहीं है बिल्कुल ना। मैं खुद अभी सेट करने वाली हूँ, थोड़ा टाइमिंग चेंज होगा, तो प्लीज़ वहाँ फॉलो कर लो एंड यूल गेट टू नो।
I think I told you my code in an academy. You can use SDC Live or SDC 18 to unlock special classes for free, or to get a 10% discount on Plus or Iconic subscription. Okay, thank you, Daria. Thank you. Means a lot. What are the facts that are known about King Tute's lineage? I just told you 3 questions and you're good to go. डर लगता है ना ट्यूट से? बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है. 3 questions प्रिपेयर कर लो, हो गया. कौन सा वाला? हावर्ड कार्टर वाला, ये अभी जाही आवास वाला, और ट्यूट की लीनेज के वाला. ये वाला कर लिया आपने तो हो गया कंप्लीट ना. इसके बाद में एज सच इसके अंदर कुछ बचा नहीं है चैप्टर के. सो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. ये टाइमिंग इन टेलीग्राम, हाँ टेलीग्राम पे तो मैं भेज दूंगी, डोंट वरी. सो अगर हम लोग एक बार उनके हिस्ट्री की बात करते हैं तो ट्यूट के ग्रैंडफादर या फादर, अभी मैं आपको बताती हूँ कि हम फादर क्यों बोल रहे हैं उनको. एमेनहोटेप थर्ड जो थे वो बहुत ही पावरफुल किंग थे. कुछ 4 डेकेड्स तक उन्होंने राज किया था. एंड उनके जो बेटे थे एमेनहोटेप फोर्थ, उन्होंने उन्हें सक्सीड किया. नाउ डेफिनेटली ये काफ़ी वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड्स था जो कि एंशिएंट इजिप्ट की हिस्ट्री में कभी आया होगा. क्योंकि उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने प्रमोट किया था वर्शिप ऑफ एटेन. उनके फादर दैट इज ट्यूट के ग्रैंडफादर एमेनहोटेप थर्ड जो थे वो आमुन को वर्शिप करते थे, और उनके बेटे दैट इज ट्यूट के पापा किसको फॉलो करते थे? एटेन को फॉलो करते थे. इसीलिए उन्होंने अपना नाम भी चेंज कर लिया और अपना नाम रख दिया अखैंटन. नाउ अखैंटन के बाद में उन्होंने आमुन के सारे रिलीजियस सिंबल को डिस्ट्रॉय कर दिया, रिलीजियस कैपिटल को मूव कर दिया, एंड इसके साथ साथ में उन्होंने टेम्पल्स वगैरह सब क्लोज कर दिए. जब अखैंटन की डेथ हुई तो उसके बाद में कुछ पीरियड के लिए एक बहुत मिस्टीरियस रूलर आया था और फिर वो चला भी गया. इसके बाद में ट्यूट आए थे उनकी प्लेस पे, एंड ट्यूट ने वर्शिप ऑफ आमुन फिर से प्लेस किया. उन्होंने फिर से आमुन का वर्शिप चालू किया और उन्होंने अपना नाम चेंज किया और उन्होंने अपना नाम रखा ट्यूटन खामुन. ये रीजन है कि हम ट्यूट के ग्रैंडफादर को ट्यूट का फादर बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ग्रैंडफादर के लीनियज को आगे बढ़ाया था, अपने डैड के आइडियोलॉजीज को नहीं. सो ट्यूटन खामुन बहुत छोटे थे एंड डेफिनेटली लास्ट थे अपने पूरे लीनियज में, पूरा जो उनका डायनेस्टी था उसमें. उनकी डेथ के साथ में उनकी पूरी डायनेस्टी में अब कोई नहीं बचा था जो रूल कर सकता था. एंड दैट इज द रीजन वाई ट्यूट की डेथ एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है एंड बहुत बड़ा क्वेश्चन है. ऑल राइट, सो ये था ट्यूट वाला चैप्टर. चलते हैं हमारी थोड़ी सी छोटू से बोरिंग चैप्टर पे, विच इज हाउ डू दी चाइनीज एक्सपेक्ट द पीपल टू व्यू दी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल. ना ये वाला जो चैप्टर है इसके अंदर आर्ट पे क्वेश्चंस आएंगे. चाइनीज और यूरोपियन आर्ट पे क्वेश्चन आ सकता है. इसके अंदर क्वेश्चन आ सकता है डाओइज्म पे, थ्योरी ऑफ डाओइज्म, उस पे क्वेश्चन आता है मेजरली. इसमें क्वेश्चन आ सकता है नेकचंग पे. ये 3 मेजर चीज़ें हैं जिन पे इसमें क्वेश्चन आ सकता है. सो यस, जस्ट अ मिनट. यस, वाओ, आई हैव इंक्लूडेड ऑल ऑफ देम. या अब बोरिंग नहीं लगता ना? अब कैसे लगेगा बोरिंग? अच्छा बच्चे बन गए हो तुम. सो अभी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल के बारे में बताना है ना. ये क्वेश्चन पूछता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल के बारे में, और मेरे बेचारे भोले से बच्चे सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल के बारे में लिख देते हैं. नहीं बच्चों, इसको सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल के बारे में नहीं लिखना है. पहले बताना है यूरोपियन आर्ट क्या है, चाइनीज आर्ट क्या है, यूरोपियन आर्ट और चाइनीज आर्ट दोनों अलग अलग कैसे है, फिर चाइनीज आर्ट में ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल क्या होता है, ऐसा. चलो ऐसा लिख के देखोगे. अनलाइक यूरोपियन आर्ट, ठीक है, ऑल राइट रति, दैट इज अभिषेक. Unlike European art, Chinese art is meant to be metaphorical. Now, an artist in China would not like the onlooker to look at a particular landscape from a specific angle. The Chinese painter does not choose a specific viewpoint. One can enter his landscape from any point and travel in it. The artists create a course for your eyes to journey up and down, back again at an unhurried pace.
यहाँ पे चाइनीज आर्ट के लिए सबसे अच्छा चीज ये है कि आप ना किसी भी एंगल से उसे देख सकते हो, आप किसी भी एंगल से आर्ट में एंटर कर सकते हो, आपका खुद का एक जर्नी हो सकता है उस आर्ट को लेके, एंड आप उसको कैसे भी यूज कर सकते हो, आप कुछ भी मान सकते हो। इनफैक्ट इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने दिया अबाउट द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। नाउ व्हेन यू ओपन द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, और मे बी लाइक दिस, व्हेन यू ओपन द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, दिस दैट हॉरिजॉन्टल है, so yeah, when you open the horizontal scroll, आप धीरे धीरे जब उसे ओपन करते हो ना, you are physically as well as mentally involved in it. You are physically involved because you are opening it, and physically involved because you're opening it, and mentally involved because you're excited कि क्या है that way. So you have your own journey, आपका खुद का एक journey होता है, and जब आप एक horizontal scroll को open करते हो, एंड ये जो है ये जर्नी है जो कि एक बेसिक आइडिया है चाइनीज फॉर आर्ट फॉर्म का, क्योंकि वो चाहते हैं कि नॉट ओनली पेंटर बट जो एक इंसान उसे देखता है वो भी उसके अंदर इक्वली इन्वॉल्व रहे। सो यू हैव द फिजिकल एज वेल एज इंटरैक्ट मेंटल इन्वॉल्वमेंट इन द इंटायर प्रोसेस। वो ये चाहते हैं कि आप उनके माइंड में जाएं, लैंडस्केप माइंड में जाकर, और फिर उसके बाद में उसको फाइंड आउट करें। लैंडस्केप डेफिनेटली एक इनर वन स्पिरिचुअल और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के लिए होता है। इट इज एक्चुअली डीपर देन व्हाट इट इज इन यूरोपियन आर्ट फॉर्म्स। Okay, Sheetal, all right, I've started that. I will take it, don't worry. What was the revolutionary idea in the art that was put forward by Jean Buffet? How did Indian artists support his theory? Now, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। यहाँ पर डाओइज्म को भी आप रेडी रख सकते हो ना। व्हाट इज डाओइज्म? डाओइज्म एक्चुअली, डाओइज्म इज अ कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हमें लैंडस्केप के बारे में पता चलता है, यांग और यिंग के बारे में पता चलता है। नाउ यांग इज मैस्कुलिन फिगर, इट इज माउंटेन, एंड यिन जो है, yin is actually the feminine figure and water. So ये आप कोई भी लैंडस्केप देखते हो तो you will always see mountain and you will always see water. Now that stays intact. इसके बीच में क्या होता है क्या नहीं होता है, that is different. But whenever you're going to see a landscape, you're going to see mountains and you're going to see water. Agreed? Now there is a point in between जहाँ पे you will find कि as such कुछ नहीं है, वो खाली एरिया है। वो जो खाली एरिया है ना, that is known as middle void. उसको हम मिडिल वॉइड बोलते हैं। अब वो मिडिल वॉइड इज योर प्लेस फॉर योर प्राणायाम। ऑल राइट रति, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। So that is your pranayam. Now there you actually stand, you realize that this is the empty space. Now that is the space given to you by the painter so that you can relax, breathe in, breathe out, process it, and that way. So वो middle void है। दैट्स हाउ डाओइज्म का जो थ्योरी है वो चलता है। हाँ, अब हर्ष यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, हर्ष हमने यहाँ पर ये देखा है कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है जिसमें यांग है, यिन है, मिडिल वॉइड है, प्राणायाम एंड स्टफ, यहाँ से हमें ये पता चला है कि इन सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ह्यूमन बीइंग है। और वो क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स आर एक्चुअली द आई ऑफ द लैंडस्केप। लैंडस्केप कैन बी ब्यूटिफुल, लैंडस्केप कैन बी एनीथिंग, बट अगर उसको कोई देखने वाला नहीं है, इट loses its importance, right? So that is something that is said by कि man सबसे important role play करता है, because man आंखें होता है लैंडस्केप का, वही तो देखता है उसको ना, ऐसा। ओके, 12th भी करवा देंगे, डोंट वरी। ऑल राइट, हाँ जी 12th करवा देंगे। ह्यूमन बीइंग या मैन, ह्यूमन बीइंग ही है मैन, MAN मैन है ना, वो मैन का मतलब मेल्स नहीं है, मैन का मतलब ह्यूमन बीइंग है। हम जब भी मैन लिखते हैं तो उसका हर बार मतलब मेल्स नहीं होता, ह्यूमन बीइंग होता है, ऐसा। चलिए, एक ये वाला जो रेवोल्यूशनरी आइडिया वाला क्वेश्चन है, बनाएगा कौन एग्जैक्टली? सो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये पता है क्या है? ये आउटसाइडर आर्ट के बारे में है, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। सो बिफोर द फ्रेंच पेंटर जीन चैलेंज द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट बर्ट इन 1940s, पीपल वर नॉट इंटरेस्टेड इन आर्ट ऑफ अनट्यूटर्ड क्रिएटिव थिंकर्स। इससे पहले सारे लोग क्या करते थे? इससे पहले सारे लोग क्या करते थे? आर्ट को बोलते थे जिसने सीखा हुआ है केवल वही बनाएगा।
इन्होंने 1940s में इस आइडिया को प्रोपोगेट किया कि नहीं, देयर कैन बी आउटसाइडर आर्ट। नाउ व्हाट वाज आउटसाइडर आर्ट? आउटसाइडर आर्ट का मतलब है एक ऐसा इंसान जिसको कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, बट वो अपना टैलेंट शो करने के लिए, आर्टिस्टिक इंसाइट शो करने के लिए एक बहुत अमेजिंग पेंटिंग बनाता है, जो कि डेफिनेटली बहुत वेज में मोटिवेट कर सकता है दूसरे लोगों को, उसको हम आउटसाइडर आर्ट बोलते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो उनका जो थ्योरी था, जब उन्होंने ये चीज़ 1940s में बताया था, तो इंडिया में सच में ऐसा ही एक अनट्यूटर्ड जीनियस था जो कि एक पैराडाइज क्रिएट कर रहा था। एंड लेट मी टेल यू, इंडिया में वो जीनियस थे नेक चंद। ना नेक चंद उन्होंने वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस किया है इस पूरे कॉन्सेप्ट में, बाय क्रिएटिंग द रॉक गार्डन एट चंडीगढ़। चंडीगढ़ में रॉक गार्डन क्रिएट करके उन्होंने वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन किया है यहाँ पे ना। ऑल राइट, देन वी हैव नेकचंद के बारे में आपको बताना था। अब ये वाला जो है इसका भी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि इसके अंदर ना एमसीक्यूज भी आ सकते हैं एज वेल एज ये भी पूछा जा सकता है, तो ये थोड़ा सा रटने का कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से पढ़ोगे। क्विकली रीड कर देती हूँ आपके लिए। So we have Nekchand's work is acknowledged in India's biggest contribution to outsider art, the 50th issue of Raw Vision, UK based magazine है ये। उन्होंने नेकचंद के पूरा जो कॉन्सेप्ट था उसको दिखाया रॉक गार्डन का, Women by Waterfall on its anniversary issue cover. It reported how Nekchand had used everything from tin to sink to a broken down car to create a work of art that took him to the pinnacles of glory. सो ही लेजिट यूज्ड एवरीथिंग दैट ही कुड, एक टिन से लेके एक ब्रोकन कार तक उन्होंने यूज किया टू क्रिएट द पिनाकल्स ऑफ ग्लोरी, योर्स ट्रूली रॉक गार्डन। द स्विस कमीशन ऑफ यूनेस्को अपलॉडेड हिज आर्ट, उन्होंने बहुत अच्छे से उसको अपलॉड किया, अप्रिशिएट किया और बोला कि ये बहुत ही खतरनाक एक डिस्क्रिप्शन है अपने ड्रीम्स का जो उन्होंने शो किया है। इनफैक्ट उन्होंने द 5 month इंटरैक्टिव शो ऑफ रियलम ऑफ नेकचंद में जो अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था, उसमें भी उसके बारे में बात की गई। एंड डेफिनेटली ये इंडिया के लिए बहुत ही ऑनर की बात है कि कोई हमारे इंसान ने ऐसा किया है, हमारे सिटीजन ने ऐसा किया है। सो दैट ब्रिंग्स लॉट ऑफ ग्लोरी टू अस। काव्य सेज आपका इंग्लिश लिटरेचर का आपका रिवीजन कोर्स प्लस पर है या यूट्यूब पर है? प्लस है। यूट्यूब है। You will find videos here also, don't worry. Hi Priya, good morning. All right, now we have Ailing Planet. Ailing Planet में we have various visionaries and academicians have warned against the hazardous consequences if we do not wake up to our responsibility towards environment. Elaborate. So यहाँ पर आपको बताना है कि किसने यहाँ पर एक रोल प्ले किया है। हाय सिया, गुड मॉर्निंग। ये बताने के लिए कि अगर हम लोगों ने अभी कुछ करना स्टार्ट नहीं किया तो हम अर्थ को डिस्ट्रॉय कर लेंगे मैसिवली। एलके झा जो कि इंटरनेशनल कमीशन के ओनली इंडियन मेंबर है, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के बारे में बात की है कि किस तरीके से प्लैनेट एलिंग प्लैनेट है, एक सिक पेशेंट जैसा हो गया है जो कि बेचारा अच्छे से प्रॉपरली ब्रीथ भी नहीं कर पा रहा। सेम सही केस है ये। अगर हम अर्थ को देखें तो अर्थ लिटरली बहुत ज़्यादा सिक है और वो ब्रीथ भी नहीं कर पा रही है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने डेफिनेटली इस चीज़ को रियलाइज़ किया है एंड इसीलिए अब फाइनली हम लोग इस चीज़ को समझते हुए अपने प्लैनेट पे ध्यान दे रहे हैं। अगर हम देखें तो लेस्टर आर ब्राउन जो है, उन्होंने भी अपनी बुक के थ्रू दैट वाज द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स पॉइंट आउट करने की कोशिश की है कि 4 इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल सिस्टम हैं जो कि डेफिनेटली अर्थ को चलाते हैं, और वो 4 सिस्टम है फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, क्रॉपलैंड्स। उन्होंने बोला कि ये अगर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो कि हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करने लगे हैं, तो डेफिनेटली कुछ नहीं बचेगा। सो अगर लार्ज एरियाज ऑफ वर्ल्ड में देखें तो ह्यूमंस ने डेफिनेटली ऐसा कोशिश किया है कि बस वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए यूज़ किए जा रहे हैं इसको। अभी यहाँ पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया है विच इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, और उस डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में हमने देखा है कि कैसे हम लोगों को डेवलपमेंट करना है, बट हम लोगों को फ्यूचर जनरेशन को हैम्पर नहीं करना है। इसके बाद में वी हैव 4 सिस्टम जो आपको बताना है, इस पर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, और इसमें 4 सिस्टम्स के बारे में बताना है, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स के बारे में। इसमें आपको बताना है किस तरीके से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इनको डिस्ट्रॉय कर दें।
हम ऐसे हो चुके हैं कि हम इन चारों सिस्टम को, जिसके ऊपर पूरा अर्थ खड़ा हुआ है, हम इन चारों सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. सो ये सारी चीज आपको यहाँ बतानी है. एक बहुत अच्छी लाइन आपको चैप्टर में देखने को मिलेगी, एंड दैट इज फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइज, एजुकेशन स्प्रेड्स एंड हेल्थ इंप्रूव्स. इसको आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, इसमें आपको बताना है कि किस तरीके से पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे ग्रोथ में, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा रिसोर्सेज खर्च होंगे. सो जितना ज़्यादा बड़ा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा रिसोर्सेज जल्दी जाएंगे. डेवलपमेंट नहीं पॉसिबल है अगर हम लोग इसी तरीके से पॉपुलेशन को ग्रो करते रहे. डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि रिच जो है वो रिच होते जाते हैं और बेचारे पुअर होने लग जाते हैं. यहाँ पे पुअर को ये लगता है कि ज्यादा बच्चे हैं दैट मीन्स ज्यादा वर्कर्स उन्हें मिलेंगे. नहीं, ज्यादा बच्चे हैं दैट मीन्स ज्यादा अनएम्प्लॉयड लोग उन्हें मिलेंगे जिन्हें उन्हें खाना खिलाना है. सो अभी हमारा डेफिनेटली जो चॉइस है वो चॉइस हो चुका है, या तो पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लें या फिर पॉवर्टी में फंसे रहें. सो इसीलिए इट्स बेटर अगर हम लोग क्या करें, पॉपुलेशन को कंट्रोल करें. हमें एजुकेट करना चाहिए लोगों को दैट दे शुड प्लान देयर फैमिली, एंड दैट्स हाउ yeah, it should be controlled. All right, now that is done. Hi, good morning. Rita Brita, hi Akash. All right. सो अभी ब्रीफ कैरेक्टर स्केच देना है फ्रैंक हंटर का. फ्रैंक हंटर का कैरेक्टर स्केच बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको मिल सकता है ना, ऐसा आपको डेफिनेटली एग्जाम में मिल जाएगा ये. अभी मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ. ये जो है ब्राउनिंग वर्जन जो चैप्टर है, ब्राउनिंग वर्जन के साथ ना एक इशू है, और वो इशू ये है कि ब्राउनिंग वर्जन आधा सा है इसके अंदर ना, पूरा नहीं है. आपको अगर पूरा प्ले समझना हो ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो आप मुझे स्पेशल पे ज्वाइन कर सकते हो. 1 या 2 फरवरी को करवाऊंगी, तो वहां आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो. तो अभी ना यहाँ पे हम जो कैरेक्टर स्केच बनाएंगे, ये कैरेक्टर स्केच जो बुक में है उसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं, पूरे प्ले के अकॉर्डिंग नहीं बना रहे हैं, तो थोड़ा उसका ध्यान रखना. ऑल राइट. सो फ्रैंक हंटर एक पॉपुलर यंग साइंस टीचर है जो कि जिसको स्टूडेंट्स बहुत पसंद करते हैं, और वो डेफिनेटली स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से समझते भी हैं. वो पॉपुलर है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि डेफिनेटली मतलब वो साइंस पढ़ाते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा वो पॉपुलर है. इसके साथ में वो उनको ऐसा लगता है कि जो ऐसे बच्चे हैं जो कि साइंस में बस ऐसे ही आ जाते हैं, वो स्लैकर्स हैं. बहुत इजी टू टॉक और अप्रोचेबल है, आप आराम से उनसे बात कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो. उनका एटीट्यूड जो है उन्हें काफ़ी ईज में पुट करता है. टैप्लो को भी काफ़ी अच्छा लगा उनके साथ बात करके, कि वो पूरा आराम से सारी बातें उनको उसने बता दिया. जब टैप्लो ने मिस्टर क्रॉकर हैरिस को क्रॉक कह के रेफर किया, तब उन्होंने उनको करेक्ट भी किया कि इट्स नॉट क्रॉक, इट्स मिस्टर क्रॉकर हैरिस. वो डेफिनेटली टीचर्स की बुरी बुरी बातें करवाने के लिए बच्चों को प्रोवोक करते हैं, एंड वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि टैप्लो और मिस्टर क्रॉकर हैरिस का रिलेशन कैसा है, एज इन मिस्टर क्रॉकर हैरिस का अपने बच्चों के साथ रिलेशन कैसा है. वो एनकरेज करते हैं टैप्लो को मिस्टर क्रॉकर हैरिस के ऑर्डर को डिसोबे करने के लिए, जो कि गलत है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ द कैरेक्टर स्केच ऑफ फ्रैंक हंटर. Yes, there is the affair between Frank and Millie Harris. Now, okay. I did not say that. No. What idea do you form of Taplow after reading the play Browning version? Taplow बहुत अच्छा बच्चा है, 17 years का है ये, एंड लो 5th ग्रेड में पढ़ रहा है, एंड बहुत ओबीडियंट है, हार्ड वर्किंग है, उसको बहुत पसंद है साइंस, और वो एक्स्ट्रा वर्क के लिए आया है मिस्टर क्रॉकर हैरिस के लिए. और अभी वो ये सोच रहा था कि वो गोल्फ खेलने जाए, बट मिस्टर क्रॉकर हैरिस को ओबीडियंटली फॉलो करने के लिए वो वहाँ आया है. जब टैप्लो वहाँ आते हैं, मिस्टर फ्रैंक वहाँ पर है, एंड दैट इज़ वाई वो वहाँ से वो बात करते हैं. जब उनको बहुत बार प्रवोक किया जाता है, नॉट ओनली मिस्टर फ्रैंक बट मिसेस क्रॉकर हैरिस भी उन्हें प्रवोक करती है कि वो वहाँ से चले जाएं, तब भी वो वहाँ से नहीं जाते हैं. काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, किसी की डिसरिस्पेक्ट वो नहीं करते हैं. तो वो भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पार्ट है उनके कैरेक्टर का. Please say that. No. Who is entering here? Yes, you don't get to confuse my students here. Come on, they haven't studied it yet.
All right. Read the extract given below and answer 2 questions. Okay. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's. That was before I was born, and see which appears to have changed less. Watch their terribly transient feet. Now, let me just tell you, यहाँ पे Silk Road रह रहा है. लेट मी जस्ट चेक. रिवीजन चल रहा है. हाँ जी. फ्रैंक के कैरेक्टर स्केच में की लाइंस तो एनसीईआरटी में नहीं है ना. नहीं नहीं, हम लोगों को खुद फॉर्म करना होता है कैरेक्टर स्केच. मैंने फॉर्म करके दिया ना तुमको. अच्छा, बाय द वे, सिल्क रोड नहीं है अभी इसमें, बट मैं टुवर्ड्स द एंड उसको करवा दूंगी, तो जस्ट डोंट वरी अबाउट इट. प्रॉबेबली. ऑल राइट. आज तो कोई क्लास नहीं है स्पेशल. अरे है, अभी आप टेंशन मत करो. आपको क्लास मिल जाएगी. अभी मैम जाएगी ना क्लास छोड़ के, फिर एक बार चेक करना, फिर मिल जाएगी आपको. ऑल राइट. ओके अभिषेक, गॉट इट. सो ये एक्सट्रैक्ट आपको देखने को मिलेगा हमारे प्यारे से पोअम में से, विच वॉज द फोटोग्राफ से देखने को मिलेगा ये ना. मिल जाएगा, पीडीएफ अरेंज करती हूँ आपके लिए ना. सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय स्माइल थ्रू हेयर. स्माइल थ्रू हेयर का मतलब क्या है? स्माइल थ्रू हेयर का मतलब क्या है? इसका मतलब है वो क्या कर रहे थे, उनका जो हेयर थे वो ऐसे मुंह पे आ रहे थे उनके, और फिर वो ऐसे बीच की ऐसे बढ़िया सी ब्रीज आ रही थी, उस पर से वो स्माइल कर रहे थे. इस तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं. हाँ जी. सिल्क रोड नहीं, सिल्क रोड डिलीट नहीं हुआ है. एडवेंचर और फादर ऑफ सन डिलीट हुआ है. सिल्क रोड इज स्टिल देयर. व्हाट हैज नॉट चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सी चेंज नहीं हुआ है क्योंकि नेचर का पार्ट है. फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम. ट्रांजिएंट इज द वर्ड. Both rye with the labor ease of loss. Poet is missing her mother. What is the role of her mother in forming personality of the child? Wow, ये इस तरीके के क्वेश्चन फंसा देते हैं. सो ये बताने की कोशिश कर रहा है. ये पूछ रहा है कि यहाँ पर जब लिखा हुआ था कि दोनों को ही लॉस हुआ है, इसका मतलब क्या है, और एक बच्चे के पूरी ग्रोथ में, उसकी फॉर्मेशन में मॉम का क्या हाथ होता है. सो मदर का रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक बच्चे की पर्सनालिटी को शेप करने के लिए. ये हमने यहाँ पे देखा. साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पे जब पोएट अपने मॉम के बारे में बात करती हैं तो उनको ना याद आता है कि किस तरीके से उनका रिलेशनशिप रहा है उनकी मॉम के साथ में, और वो याद करती हैं कि किस तरीके से उनकी मॉम अपने चाइल्डहुड को देखकर अपने चाइल्डहुड को उस फोटोग्राफ में देखकर हंसा करती थी. उनकी मॉम उसको देखकर हंसा करती थी क्योंकि वो मिस करती थी अपने चाइल्डहुड को. एज अ मॉम आपको बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, दिस इज वन ऑफ देम. यू हैव टू फॉरगेट कि आपका भी एक फैमिली है, आपके भी मॉम डैड है, या आपके भी कुछ कजिन्स या कुछ लोग होंगे जो आपके प्रीवियस लाइफ में, जो कि एज इन आपका प्रीवियस लाइफ का फेज था जो चाइल्डहुड वाला, उसमें रहे होंगे. बट एज अ मॉम आप वो वापस से रीलिव नहीं कर सकते हो बिकॉज यू हैव योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड यू हैव टू फॉलो देम. तो वो उन्हें देखकर हंसा करती थी. और पोएट आज उस पूरी हंसी को, उस कार्डबोर्ड वाले फोटोग्राफ को देखकर आज वो ये फील कर रही है, वो मिस कर रही है अपनी मॉम को. व्हाट इज रॉन्ग विथ माई आईज. सो वो मिस कर रही है अपनी मॉम को, और यहाँ पे उनकी मॉम मिस करती थी अपने चाइल्डहुड को, और चाइल्डहुड को मिस करते हुए वो हंसा करती थी. वो उनको मिस करती थी, और आज पोएट किसको मिस कर रही है? अपनी मॉम को मिस कर रही है. तो दोनों को लॉस हुआ है. उनकी मॉम ने अपना चाइल्डहुड खो दिया एंड शी डिड नॉट गेट इवन वन चांस जिससे वो रीलिव कर सके उसको. और आज पोएट ने अपनी मॉम को खो दिया. कुछ 12 साल हो चुके हैं उनकी मॉम को गए हुए, एंड शी मिसेस हर सो मच. सो उन दोनों के लिए बहुत बड़ा लॉस है ये. उनके लिए अपना चाइल्डहुड, और पोएट के लिए अपनी ममा का हंसना. ये दोनों ही बहुत बड़ा मेमोरी उनके लिए बन गया है, एंड दोनों के लिए लॉस है. Thank you, Amu. Thank you. No, it's fine. It's fine. What values do you learn from Goldfinch in the poem Laburnum Top? हाँ, Laburnum Top में Goldfinch से क्या सीखते हैं हम?
वो एक्चुअली गोल्डफिंच की अगर हम बात करते हैं तो वो ना रेगुलर इंटरवल्स पे जाती है, अपने बेबीज के लिए खाना लाती है, फिर वापस उनको खिलाती है, फिर चली जाती है। ये शो करता है कि वो कितनी ज़्यादा केयरिंग नेचर की है, उनकी मदरली वैल्यूज़ को, अफेक्शन को, केयर को हाईलाइट करता है। एंड वो बताते हैं कि कितना ज़्यादा वो सोचती है अपने बच्चों के बारे में, और इसीलिए वो उसको लेबर्नम में एकदम अंदर छुपा देती है ताकि किसी को पता ही नहीं चले, वो बच्चे कैमोफ्लाज हो जाए वहां पे ना, ऐसा। हम्म। सो ऐसा है। अच्छा, बाय द वे मैं बताना भूल गई, आज रात में 10:15 पे मेंटी है, तो ज्वाइन करना मत भूलना। ऑल राइट। इसके बाद में हमने ये भी देखा कि वो बहुत ज्यादा अलर्ट है अपने सराउंडिंग्स को लेके, और एकदम लिजार्ड के जैसे वो मूवमेंट करती है सो दैट कोई उन्हें पहचान ना पाए। हाउ एवर देर इज अ रीजन फॉर अ मूविंग लाइक दिस मैनर, क्योंकि ऑब्वियसली वो चाहती है कि कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं हो कि वो पहचान जाए कि उनकी बेबीज यहाँ पे है, एंड बेबीज को कुछ नुकसान ना हो। वो नहीं चाहती हैं कि उनके चिक्स वहाँ नेस्ट में हैं एंड उन्हें कोई नुकसान ना हो, बेसिकली। सो अभी लेबर्नम टॉप प्रोटेक्ट करता है, एक रीजन बनता है गोल्डफिंच का अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने का, एक जरिया बनता है। सो सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। एंड उनकी मॉम उनके लिए चुपके से जाती है, खाना लेके आती है, फिर चुपके से जाती है, खाना लेके आती है, जो कि उनकी मदरली वैल्यूज को शो करता है। तो मदर्स आर मदर्स, नो मैटर ह्यूमन बींग्स और एज ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स और बर्ड्स, mothers will be mothers. All right, thank you Amu, thank you. Wow, Shubnaka, हाँ, hi. ऑल राइट, इसके बाद में लेबोर्नम टॉप का कुछ मैंने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट डाला था, which is then with airy delicate whistle chirp whispering she launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty. ये launches का मतलब क्या है? launches का मतलब है उड़ जाती है वो। What effect does the last line create? ये बोलता है कि किस तरीके से ना पहले जो लेबर्नम ट्री था एकदम स्टिल था, और फिर जैसे गोल्डफिंच आई एकदम से लाइवली हो गया, फिर गोल्डफिंच गई वापस से सैड हो गया, ऐसा वापस से स्टिल हो गया। डैश फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट मीन सेम एज स्ट्रेंज और मिस्टीरियस। इरी का मतलब होता है स्ट्रेंज, एरी, इरी का मतलब होता है स्ट्रेंज या मिस्टीरियस। ऑल राइट, इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप प्रिपेयर कर सकते हो बाकी पोम से भी, मैं आपको बताती हूँ। एक हमारा पोम इसके अंदर आएगा वॉइस ऑफ रेन का। सो वॉइस ऑफ रेन से आप कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हो। नाउ वॉइस ऑफ रेन वाले कौन से क्वेश्चंस होंगे? सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले तो क्या पूछते हैं पोएट रेन से। पोएट से वो रेन से वो पूछते हैं कि तुम कौन हो, और उसके लिए वो रिप्लाई करती हैं कि मैं पोअम हूँ अर्थ की। यहाँ पे एक एक अच्छा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस तरीके से क्यों रेन बोलती है कि मैं इम्पैल्पेबल हूँ। रेन ऐसा क्यों बोलती है कि मैं इनपैल्पेबल हूँ? क्योंकि वो बताना चाहती है कि वो जब उठती हैं, जब वो वेपर्स के फॉर्म में उठती हैं, क्लाउड बनती हैं या वाटर के फॉर्म में नीचे आती हैं, तो वो जो फॉर्म है, ये जो उनका ऊपर जाना और फिर नीचे आना कोई नोटिस नहीं करता है, सो इसीलिए वो इम्पैल्पेबल है। इसके बाद में एक क्वेश्चन इस पे आता है कि रेन का डिसेंड करने का पर्पस क्या है? रेन नीचे आती है, रेन रेन के फॉर्म में नीचे आती है, उसका पर्पस क्या है? वो पूरा ऐसे जहाँ पे पानी की कमी है उन्हें पानी प्रोवाइड करती है, डस्ट क्लियर करती है। वो इसके साथ साथ में आपको पता है उनकी वजह से सीड नहीं रहते और वो प्लांट्स में कन्वर्ट होते हैं, नहीं तो सीड ही रह जाते हैं। हाय स्पाइडरमॉन, गुड मॉर्निंग। इसके बाद में एक अच्छा क्वेश्चन आ सकता है जो कंपैरिजन पोएट ने किया है सॉन्ग के साथ में। सो जो कंपैरिजन उन्होंने किया है कि दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना सॉन्ग को फर्क पड़ता है ना रेन को फर्क पड़ता है कि कोई उन्हें अप्रिशिएट करे या नहीं करे, उनका ध्यान दे या ना दे, वो उनका काम वो करके चले जाते हैं। और उनका काम क्या है? उनका काम है सूदनेस प्रोवाइड करना। एक सॉन्ग जो है एक सिंगर के हार्ट से आता है, हम लोग उसको सुनते हैं और वापस से वो सिंगर के हार्ट में जाता है क्योंकि हम प्यार करते हैं उस सॉन्ग से। सेम इज द केस विद रेन। रेन आती है, रेन हमें पता भी नहीं चलता वो कब आती है, एग्जैक्टली क्या होता है, बट जब वो आ जाती है और वो ग्रीनरी कर देती है और प्लांट्स उगते हैं, सारी चीज़ें हैपनिंग होती है, वो इतना सूदिंग इफेक्ट हमें प्रोवाइड करती है कि वापस से हमें ऐसा फील होता है कि हाँ, कि कुछ तो हुआ है, और रेन वापस अपने ओरिजिन में चली जाती है। दैट मीन्स उसका पूरा जो प्रोसेस है ओरिजिनेशन से पूरा सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करके वापस ओरिजिनेशन में चले जाने का, सॉन्ग का और रेन का, वो सिमिलर है।
इसके बाद में वी हैव अनदर पोअम जो कि चाइल्डहुड वाला है। चाइल्डहुड वाले पोअम में सबसे ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि जो पोएट है वो ये क्यों मानते हैं कि एडल्ट जो है वो हिपोक्रिट है। क्योंकि एडल्ट्स ना प्रीच करते रहते हैं प्यार के बारे में, वो बात करते रहते हैं दैट यू शुड ऑलवेज लव ईच अदर, वी शुड ऑलवेज बी केयरिंग अबाउट ह्यूमैनिटी, वी शुड लव ह्यूमैनिटी एंड वी शुड डू दिस एंड वी शुड डू दैट। ये सारी चीज़ों के बारे में बात करते रहते हैं, बट वो खुद कभी भी उतना लविंगली एक्ट नहीं करते हैं। सो यहाँ पे पोएट हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से एज एन अडल्ट हम एक हिपोक्रेट बन जाते हैं, बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इसके साथ में क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि जो पोएट है उन्होंने ये क्यों बोला कि हेल और हेवन एग्जिस्ट नहीं करता है। वो उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि हेल और हेवन वो ज्योग्राफी पे लोकेट नहीं कर सकते। जब एक इंसान बड़ा हो जाता है, वो चाइल्ड नहीं रहता, उसके पास इतना दिमाग होता है कि वो हर चीज़ का साइंटिफिक रीज़न, हर चीज़ का रीज़न ढूंढने लगता है। एंड यही है कि उन्होंने देखा कि हेल और हेवन ज्योग्राफी पे है क्या, तो क्योंकि वो ज्योग्राफी पे उसे लोकेट नहीं कर सकते, इस वजह से हेल और हेवन एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसके साथ साथ में अगर हम देखें तो एडल्ट्स का क्वेश्चन है, यस। फाइनली लास्ट क्वेश्चन जो इससे आ सकता है वो है इन्फेंट फेस का। पोएट बोलते हैं कि डेफिनेटली मुझे नहीं पता है कि मेरा चाइल्डहुड कहाँ चला गया है, बट मुझे पता है किसी फॉरगॉटन प्लेस पे जा चुका है, बट मैं उसे वापस से ढूंढ सकता हूँ एक इन्फेंट के फेस में जो कि इनोसेंट है, उसे पता नहीं है लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हिपोक्रेसी के बारे में पता नहीं है एडल्ट्स के, वो अभी भी सांता क्लॉज में बिलीव करता है, दैट वे। सो या ये पोएट ने बोला। फादर टू सन आपके आ नहीं रहा है। आ जाते हैं हमारे स्नैपशॉट के सबसे पहले चैप्टर पे, विच इज द समर ऑफ द ब्यूटिफुल हॉर्स। So we have described the ride of Aram and Murad when they went out together for the first time. Now Aram को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उनके पास में एक हॉर्स था। वो इसीलिए बिलीव नहीं हो रहा था क्योंकि अरम को पता था कि वो गरीब थे एंड डेफिनेटली वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे हॉर्स को। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि वो गैरोगेलियन फैमिली से बिलोंग करते थे जो कि जानी जाती थी उनकी ऑनेस्टी के लिए, उनके ट्रस्ट के लिए, और ये पॉसिबल ही नहीं था कि उनके किसी भी फैमिली मेंबर ने किसी चीज को चुराया होगा। सो सबसे पहले तो आरम इस पे बिलीव नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद में जब मुराद ने बोला कि ही हैज गॉट नो टाइम, तो इसीलिए वो फटाफट से वहां आए। अभी भी वो अपने दिमाग में वो डराइमा लेके चल रहे थे कि क्या हो रहा था एग्जैक्टली ना। वो उनको पता चल गया था कि जरूर इसने चुराया है, बट वो अपने आप को इतना ज्यादा पसंद करते थे हॉर्स को कि वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं नहीं, हमने इसको चुराया इसलिए थोड़ी है कि हम इसको बेचेंगे, ये तो हमने राइड के लिए चुराया है। तो एक हॉर्स को राइड के लिए चुराना तो चुराना होता ही नहीं है ऐसा। इसके बाद में फाइनली वो लोग हॉर्स को लेके गए और हॉर्स बहुत अच्छे से भागा, मतलब पूरे कंट्री साइड तक वो चले गए एकदम लास्ट तक ना। फिर वो इरिगेशन डिच और ऐसे 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 करते हुए गए। अभी यहाँ पर उन्होंने ये बोला कि मुराद ने बोला कि मैं अकेले राइड करना चाहता हूँ, तो अरम ने भी बोला कि मैं भी अकेले राइड करूंगा। मुराद तो अकेले राइड करके आ गया, अरम को जो हॉर्स ने फेंका उसके बाद में अरम इज लाइक कि क्या हुआ, और हॉर्स भाग गया। मुराद और अरम ने दोनों ने उसको ढूंढा। इसके बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि वो हॉर्स को किसी ऐसी जगह पे किसी बान में छुपा देंगे, एंड उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक पुराने बान में छुपाएंगे उसको, एंड वो अर्ली मॉर्निंग राइड्स लेते रहेंगे। गुड मॉर्निंग विदही। 12th का कब लाइव है? फरवरी से होगा। अभी तो मैं आपको बता दूंगी टाइमिंग, आऊंगी ना जब लाइव पहले, सबसे पहले तब ऐसा। ओके अच्छा एक चीज बताओ कि अंकल खुसरो जो थे और जॉन बायरो जो थे, उनकी मीटिंग में कुछ ह्यूमरस लेके आना है। सो अंकल खुसरो आपको पता है कैसे है वो ना, इज ऑलवेज अबाउट नॉट पेइंग अटेंशन टू एनीथिंग। उनका खुद का बेटा आके उन्हें ये बोलता है कि उनके घर में आग लग गई है, बट ही सो चिल कि वो बोलते हैं पे नो अटेंशन टू इट, बोला अरे अटेंशन मत दो, छोड़ो ऐसा। सो अभी अंकल खुसरो आराम के घर पे आते हैं एंड वो आराम से कॉफी एंड सिगरेट्स कंज्यूम कर रहे हैं। हाउ एवर लेट मी जस्ट टेल यू, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। सो इसके बाद में वो कॉफी और सिगरेट्स कंज्यूम कर रहे हैं। इतने में वहां पर एक विजिटर आता है जिसका नाम है जॉन बायरो, फार्मर है वो बेचारा दुखी होके आता है। वो बोलता है यार मेरा हॉर्स पता नहीं कहाँ चला गया, अब मैं क्या करूं, 1 महीना हो चुका है। अंकल खुसरो अनॉय हो जाते हैं और बोलते हैं अरे इट्स नो हार्म, नो पे नो अटेंशन टू इट, बोला कुछ नहीं है, चला गया तो चला गया, जाने दो उसको ऐसा।
अभी जॉन बायरो बोलते हैं कि मेरा जो घोड़ा गाड़ी है, मेरा जो सरे है वो बिना घोड़े के कैसे चलेगा? तो बोला अरे पे नो अटेंशन टू इट, क्या करना है घोड़े का? बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है जॉन बायरो को और बोला मुझे 10 माइल चलना पड़ा टू गेट हियर, कम ऑन आई नीड माय हॉर्स। फिर अंकल खुसरो बोलते हैं अरे पे नो अटेंशन टू इट। हम्म इतने में पापा बोलता है इट कॉस्टेड मी $60। बोला $60 का आया था? अरे बोला आई स्पिट ऑन मनी, क्या पैसे का करना है। जॉन बायरो को इतना गुस्सा आ गया, जॉन बायरो इज लाइक गेट मार के निकल रही है। बोला क्या आदमी है यार, ये क्या पागल आदमी है। सो ऐसा हो गया। सो ही एक्चुअली डिड दैट। डिस्क्राइब जॉन बायरोज मीटिंग विद टू बॉयज। सो जॉन बायरो आ रहे थे, हाँ वही तो, जॉन बायरो आ रहे थे एंड वहां पे बान में से ये लोग भी अपने हॉर्स को लेके आ रहे थे। तो जॉन बायरो और वो दोनों बच्चे मिलते हैं। अभी आपको पता है मुराद हैज अ वे विद एवरीथिंग, मुराद हैज द वे विद डॉग्स एंड हॉर्सेस एंड फार्मर्स। मुराद बिल्कुल नहीं डरता, मुराद इज लाइक डोंट वरी आई हैव अ वे विद फार्मर, अभी हो जाएगा सब कुछ ना। जॉन बायरो के सामने जाता है, आगे से गुड मॉर्निंग बोलता है एंड जॉन बायरो इज लाइक गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। फिर जॉन बायरो हॉर्स को देखते हैं एंड वो हॉर्स को देख के बोलते हैं इसका नाम क्या है? मुराद बताता है इसका नाम माई हार्ट है। सो जॉन बायरो बहुत खुश, मतलब ऐसा फील करते हैं बहुत अच्छा नाम है। फिर जॉन बायरो उस हॉर्स को देख के ये रियलाइजेस, हम्म सो जॉन बायरो रियलाइज करते हैं कि मैं स्वेयर कर सकता हूँ कि ये हॉर्स मेरा है। जो हॉर्स मेरे यहाँ से बहुत दिनों पहले चोरी हो गया था, ये हॉर्स मेरा है। एक बार मैं इसके एक बार माउथ में देख लूं, एक बार मतलब मैं एक बार देखूं, मुझे कुछ चेक करना है। बोला हाँ हाँ चेक करो। फिर उन्हें देखा कि हाँ यार यहाँ पे ये टूथ फॉर टूथ था, टूथ फॉर टूथ है, ये तो मेरा ही हॉर्स है। बट उन्हें इतना ट्रस्ट था गैरोगेरियन फैमिली की ऑनेस्टी पे कि वो भरोसा ही नहीं कर सकते थे कि गैरोगेरियन फैमिली के मेंबर ने इसे चुराया होगा। एंड दैट इज वाई वो ये बोल दिए कि कोई बात नहीं, जरूर हो सकता है कि ये मेरे हॉर्स का ट्विन हो एंड डेफिनेटली ये मेरा हॉर्स तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट मॉर्निंग जॉन बायरो को उनका हॉर्स मिल जाता है जो कि ज्यादा स्ट्रांग और बेटर तरीके से बेटर टेम्पर्ड है। सो बेसिकली यहाँ पे ये हमें पता चलता है कि किस तरीके से गैरोगेरियन फैमिली के ऑनेस्टी के चर्चे हैं कि लोगों को दिख जाता है साफ साफ कि ये तो मेरा ही है, फिर भी वो भरोसा नहीं करते हैं। सो दैट वाज देयर। वजीर कौन बुलाता है फिर? मुराद वजीर बुलाता था उसको पहले तो, बट जब जॉन बायरो ने उनसे पूछा कि इसका नाम क्या है, तब उन्होंने बताया कि मैंने इसका नाम माई हार्ट रखा है। ना क्वेश्चन जब आएगा इस पे, अगर एमसीक्यू आता है, ज्यादातर एमसीक्यू आता है, तो एक बार क्वेश्चन का फॉर्मेशन देख लेना कि वो किस बारे में बोल रहा है और फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर करना कि माई हार्ट होगा या वजीर होगा। ऑल राइट, यहाँ पे आपको कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स बताने नरेटर की मॉम और मिसेस डॉर्लिंग के। सो नरेटर की मॉम ना, दैट इज मिसेस एस, बहुत ही ट्रस्टिंग, बहुत क्यूटू सी लेडी है। वो हर किसी पे बड़ी इनोसेंट सी है, हर किसी पे ट्रस्ट कर लेती है। उन्होंने मिसेस डॉर्लिंग पे ट्रस्ट कर लिया, जो कि ये बोल रही थी कि जो कि बहुत सालों से कांटेक्ट में नहीं थी और सडनली आ गई। डेफिनेटली उनको ऐसा लगा कि कितनी काइंड है वो, कितनी अच्छी, उन्होंने उनके उस बिहेवियर को ट्रस्ट किया और अपनी सारी चीज़ें उनको दे दी। जबकि सारी चीज़ें उन्हें दे दी। मिसेस डॉर्लिंग की अगर हम बात करें तो मिसेस डॉर्लिंग बहुत अपॉर्चुनिस्ट है, वो एकदम से अपने काम के लिए किसी से भी बात कर सकती है, किसी के साथ रिलेशन रख सकती है। जब नरेटर इतने सालों बाद मिसेस डॉर्लिंग के घर जाती हैं तो उन्हें वो अच्छे से वेलकम तक नहीं करती हैं। मतलब किसी का सामान आपके पास है, किसी एक इंसान की चीज़ों को आप यूज़ कर रहे हो और आप बिहेव कर रहे हो एज इफ आप उसे जानते भी नहीं हो, तो डेफिनेटली इससे पता चलता है कि वो कितनी ज़्यादा ग्रीडी हैं, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिस्टिक हैं, वो अपॉर्चुनिस्ट हैं। ये चीज़ें देख के, और कितनी ज़्यादा रूड है, कोल्ड है और बिल्कुल भी हॉस्पिटैलिटी से ट्रीट नहीं करती है किसी को। सो डेफिनेटली मिसेस एस और मिसेस डॉर्लिंग दोनों ही बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लेडी हैं। बट मिसेस एस बहुत ज़्यादा इनोसेंट है और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेती है किसी पे, जो कि एक बहुत ही बुरा चीज़ भी हो सकता है करंट वर्ल्ड में। डिस्क्राइब द नरेटर सेकेंड विजिट। ना पहली विजिट में नरेटर क्या करती है, नरेटर जब जाती है तो मिसेस डॉर्लिंग उन्हें इग्नोर कर देती है और उन्हें बिल्कुल भी भाव नहीं देती है। जब वो दूसरी बार डिसाइड करती है कि नहीं आई नीड टू गो देयर, हर एक इंसान को लाइफ में ना क्लोजर चाहिए होता है।
लाइफ में मूव ऑन करने के लिए आपको ना क्लोजर चाहिए होता है। सो अभी यहाँ पे वो क्लोजर के लिए जाती है, वो चाहती है कि वंस एंड फॉर ऑल ये चैप्टर ही खत्म हो जाए उनकी लाइफ से। इसीलिए वो सेकंड विजिट में जाती है। सेकंड विजिट में मिसेस डॉर्लिंग की बेटी वहाँ होती है एंड वो उन्हें अंदर बुला लेती है। मिसेस डॉर्लिंग से बहुत अलग है, वो काफ़ी हॉस्पिटेबल है, उन्हें चाय के लिए भी पूछती है। जब नरेटर वहाँ जाती है तो उन्हें एक एक चीज़ अपनी दिखती है। पता नहीं नरेटर को कैसा लगा होगा वो सारी चीज़ों को देख के ना, क्योंकि वो सारी चीज़ें किसी ना किसी चीज़ की याद दिला रही थी। आपके घर में हर एक चीज़ जो है ना, उसके साथ ना एक स्टोरी है एंड वो चीज़ स्पेशल इसीलिए है क्योंकि उसके साथ वो स्टोरी है। अगर वो चीज़ आप किसी रेस्टोरेंट में, अगर वो चीज़ आप किसी स्टोर में देखोगे, तब वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं लगेगी। वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसके साथ कोई ना कोई मेमोरी जुड़ी हुई है। तो जब वो देखती है वहाँ पे ना, उनको एक फ्लैशबैक आता है मेमोरीज़ का, चाहे वो हनुका कैंडल होल्डर को लेके हो, या फिर टेबल क्लॉथ को लेके हो, या फिर कप और टी टेबल और इन सारी चीज़ों को लेके हो, या फिर वो कोई भी एंटीक्स जो है उन सबको लेके हो। उनको ना एक फ्लैशबैक आ रहा था अपने मेमोरीज का। उन्हें लग रहा था कि वो एक बहुत ही अलग इन्वायरमेंट में है, ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे सारी चीज़ें अपनी सी लग रही है, बट वो इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा अनफेमिलियर था कि वो स्ट्रेंजनेस जो थी इन्वायरमेंट की, जिसमें कि उसमें वो रह नहीं पाई। एकदम से एक बड़ा ही स्ट्रेंज इमोशन आ जाता है उनके अंदर। उन्हें ऐसा लगता है कि चीज़ें हैं ये, इनका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इनके साथ जिसका वैल्यू था वो तो चला गया। तो इनके साथ उनकी मॉम का वैल्यू था, उनकी फैमिली जुड़ी हुई थी, उनकी फैमिली तो चली गई। तो अभी ये सिर्फ चीज़ें रह गई है। ये इमोशन जब उनके दिमाग में आता है, उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, आई डोंट वांट टू लिव हियर एनीमोर, आई डोंट वांट टू स्टे हियर एनीमोर। शी गेट्स अप एंड शी इज़ लाइक कि मैं जा रही हूँ। जब मिसेस डॉर्लिंग की बेटी उनसे पूछती है कि मिसेस डॉर्लिंग आने वाली है, तब भी वो उसका रिप्लाई नहीं, वो ऐसे बोलती है इट्स फाइन, मुझे जाना है। और जब वो बाहर निकलती हैं, वो एक लाइन है जो कि इतना ज़्यादा इमोशनल लाइन है और इतने अच्छी तरीके से ऑथर ने यूज़ किया है ना, कि आफ्टर एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड विद हर, जो भी चीज़ें उन्हें भुलानी है, एड्रेस भुलाना सबसे आसान होगा। तो लाइफ उनकी इतनी ज़्यादा मिजरेबल है, उन्हें वॉर के इफ़ेक्ट्स भुलाने हैं, अपनी मॉम को भुलाना है, अपनी पूरी फैमिली को भुलाना है, अपने करियर को, अपने घर को, सब कुछ भुलाना है। और ये सब भुलाने में सबसे आसान होगा एड्रेस भुलाना, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ चीज़ें हैं। लोगों को भुलाना मुश्किल होता है, चीज़ों को भुलाना तो सबसे ज़्यादा आसान होता ही है हमेशा। तो ये एक लाइन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, लिटरेचर के एस्पेक्ट से बहुत अच्छी तरीके से फ्रेम किया गया है इसको। इसके बाद में आ जाते हैं हमारे अच्छे से चैप्टर पे, विच इज़ रंगा चैप्टर। और रंगा का चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है, जिसमें 2-3 पेजेस चले गए हैं आपके चैप्टर के, विच इज़ होशा अली। सो अभी यहाँ पे नरेटर होशा अली के बारे में बात करते हैं। वो बताते हैं कि होशा अली इज़ अ प्लेस जो कि इट्स लाइक, जैसे मैसूर है भारतवर्षा के लिए, जैसे कारीगा दाबू में फीलिंग है, वैसे ही होशा अली है मैसूर के लिए। तो बोला इतना ही इम्पोर्टेंट है होशा अली। वो बताते हैं कि होशा अली में इतनी सारी चीज़ें हैं। लेट्स टॉक अबाउट द मैंगो। ओ माय गॉड, इतनी अमेजिंग मैंगोज है। अगर आप उन्हें खाओगे ना, तो उसके बाद में आपका गला खराब होना तो पक्का है, बट उनका जो टेस्ट है ना, इट एक्चुअली अफेक्ट्स योर हो माइंड, इतनी टेस्टी है वो। इसके बाद में वो बात करते हैं क्रीपर के बारे में। बोलते हैं हमारे यहाँ पे एक पॉन्ड है और वहाँ पर एक क्रीपर है, आप नहाने जाओ तो वहाँ से क्रीपर का एक आध पत्ता लेके आ जाओ, फिर आपको खाने की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि क्रीपर के पत्ते पे आप खाना खा सकते हो। क्वेश्चन, नहाने के पॉन्ड का जो क्रीपर है, उसके पत्ते पे खाना, ओह माय गॉड। सो डेफिनेटली वो बोलते हैं कि ऐसा हमारा गांव है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ऐसा। अच्छा, अभी यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि रिएक्शन ऑफ पीपल टुवर्ड्स रंगा। जब रंगा वापस आए थे बैंगलोर से 6 महीने बाद, तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि ओ माय गॉड, रंगा तो एकदम चेंज हो गए होंगे, रंगा के तो हाथ पाँव ही बदल गए होंगे। जब लोगों ने देखा कि रंगा वैसे का वैसे ही है, उन्होंने अपना कास्ट नहीं छोड़ा है और उनका मैनर्स वगैरह सब कुछ ऐसा ही है, तो लोगों को अजीब सा लगा और लोग वहाँ से चले गए, क्योंकि उन्हें मिर्च मसाला नहीं मिला ना वहाँ पे कोई ऐसा। सो ये हुआ था। सब लोग वहाँ इकट्ठा हो गए थे ये देखने के लिए कि रंगा कैसे चेंज हुए। लेटर ऑन उन्हें पता चला कि रंगा में कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए वहाँ से चले गए सब लोग।
पर नरेटर डेफिनेटली बहुत एक्साइटेड थे और वो मिलने के लिए गए रंगा से, और रंगा ने उन्हें इतने अच्छे से एड्रेस किया जो कि उन्हें ऐसा लगा कि ओ माय गॉड, रंगा कितना अच्छा है। इतना अच्छे से एड्रेस किया कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं तो रंगा की शादी करवाऊंगा ही करवाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाय द वे, जिसके अंदर जो नरेटर है वो रंगा की शादी को का पूरा प्लॉटिंग करते हैं। तो अभी नरेटर पूरा एकदम प्लानिंग कर लेते हैं कि मुझे तो रंगा की शादी करवानी है, ऐसा। अभी वो ऐसा प्लानिंग करते हैं। ये वो तब प्लान करते हैं जब रंगा उनके घर ऑरेंजेस लेके आता है, तो वो देखते हैं कि वाह यार, ये कितना अच्छा है, कितना संस्कारी बच्चा है, इसकी तो शादी होनी चाहिए। इसके बाद में वो रंगा से पूछते हैं उसकी शादी के बारे में। रंगा की बात सुनो, रंगा अपना बड़ा सख्त है। रंगा की बात सुनो, रंगा इज लाइक मैं शादी नहीं करूंगा, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, और मैं राइट गर्ल के लिए वेट करना चाहता हूँ, मैं लव मैरिज करना चाहता हूँ, मैं सोचना चाहता हूँ मैं किसी मेच्योर लड़की से शादी करूँ जिसके साथ में जो जो समझे एग्जैक्टली मैं जो कहना चाहता हूँ ना उसको, ऐसा। हाँ जी, हाँ जी, मैं टाइमिंग सेंड कर दूंगी बेटा। ऐसा उन्होंने बोला, तो मैं ऐसा करना चाहता हूँ, तो मैं अभी शादी नहीं करूंगा। अभी यहाँ पे ना ये बहुत बुरा लगा हमारे नरेटर को, बोला ये ऐसे कैसे शादी नहीं करेगा। इसके बाद में वहां पर एक लड़की आती है गांव में जिसका नाम है रत्ना। हाँ, वही तो, वही जी, यस एग्जैक्टली। वहां पे रत्ना आती है, तो नरेटर रत्ना के घर जाते हैं, क्या प्रॉब्लम है आंखों में। वो नरेटर रत्ना के घर जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि रत्ना बहुत ज़्यादा संस्कारी है, और इनफैक्ट रत्ना को म्यूजिक भी आता है। तो वो सुनते हैं, उसकी आवाज़ सुनते हैं, उसका म्यूजिक सुनते हैं, एकदम से ऐसे हो जाते हैं कि इसकी शादी करवाऊंगा मैं रंगा से, ऐसा। तो वो यहाँ पे एक पूरा प्लानिंग करते हैं, और वो एक दिन रत्ना को बुलाते हैं अपने घर पे, और सीक्रेटली वो रंगा को भी बुला लेते हैं वहाँ पे, और रत्ना को बोलते हैं कि चलो मुझे कुछ गा के सुनाओ। जैसे ही रत्ना गा रही होती है वहां पे रंगा आ जाते हैं, एंड रंगा इज लाइक ओ गॉड, यू नो, लव एट द फर्स्ट साइट। वो रुक जाते हैं वहीं पे, मतलब वो थ्रेश होल्ड पे रुक जाते हैं। थ्रेश होल्ड पे इज वेटिंग, इज स्टेयरिंग, एंड इज लाइक ये कौन है, हु इज शी, ये है कौन। एंड यू नो, वो रुकवाना नहीं चाहते रत्ना को, चाहते हैं कि रत्ना गाती रहे गाती रहे गाती रहे। फिर रत्ना जैसे ही देखती है, रत्ना चुप हो जाती है और वो अंदर चली जाती है, शर्मा जाती है रत्ना। तो अभी रंगा आती है और रंगा बोलती है कि ओहो, मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से सिंगिंग रुक जाए, आप कंटिन्यू करो, मैं जाता हूँ। ये बोलते हैं कि मैं जाता हूँ, इतू सा भी नहीं खिसकते वो वहां से। वो रत्ना को देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, और नरेटर देखे जा रहे हैं कि रत्ना को रंगा देख रहे हैं। सो यू नो, दैट काइंड ऑफ थिंग इज हैपनिंग। अभी इसके बाद में क्या हो गया कि जैसे ही वो ये चीज देखते हैं कि अच्छा अच्छा ऐसा चल रहा है दोनों के बीच में, तो वो बात करते हैं। जब रत्ना वहां से चली जाती है, रंगा पूछते हैं नरेटर से, बाय द वे कौन है ये। तो बोला तुमको क्या करना है जानने के लिए, मेरी शादी हो चुकी है और तुमको करनी नहीं है। बाय द वे यह गांव में आई है और इसकी शादी हो गई है। जब वो ये बोलते हैं कि इसकी शादी हो गई है, रंगा इज लाइक, एक ही तो पसंद आई थी, उसकी भी शादी हो गई। रंगा का ऐसा ऐसा हो गया एकदम, छन से जो टूटे कोई सपना ना, ऐसा हो गया एकदम से। वो बेचारा वहां से बड़ा उदास होता है। अभी इसके बाद में वो जो नरेटर है शास्त्री के पास जाते हैं, उसको पूरी प्लानिंग समझाते हैं। बोलता है कि तुमको कोशिश करना है कि इसके मुंह से निकलवाना है कि इसको रंगा से, रत्ना से शादी करनी है, ऐसा ना। ऑल राइट। अभी यहाँ पे फाइनली वो रंगा को शास्त्री के पास लेके जाते हैं। शास्त्री की ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काटने पड़ेंगे हमको, क्योंकि शास्त्री बोलते हैं किसी लड़की का चक्कर है, एंड रंगा इज लाइक ओके। और वो लड़की का नाम किसी ओशन से रिलेटेड किसी चीज पे होगा। ओके, फिर बोला कि इट कुड बी कमला, इट कुड बी पचचीमॉस, ओ इट कुड बी रत्ना। एंड उसके बाद में नरेटर रंगा का इतना मजाक उड़ाते हैं और बोलते तुम इतने टाइम से रत्ना के बारे में सोच रहे थे। फिर रंगा बोलता है हाँ, मैं उसी के बारे में सोच रहा था, अब मैं क्या करूं, ऐसा ऐसा ऐसा। इसके बाद में अभी उनको पता चल गया है कि अभी शादी में करवा सकता हूँ। तो रत्ना बाहर खड़ी होती है, वो 1 मिनट जाके और नाटक करके आते हैं रत्ना के पास ना, और बोलते हैं अरे रंगा तुमको पता है रत्ना की तो शादी नहीं हुई है, वो तो कोई गलत बता रहा था मुझे, रत्ना तो अभी सिंगल है।
And Ranga is like, yes. So he's like, oh my god, this is my moment, this is my moment. And then they get married. उसके बाद उनकी शादी हो जाती है. And then next thing that you know is रंगा और रत्ना जो ये हमारे नरेटर है उनको डिनर पे बुलाते हैं उनके बेटे के 3rd बर्थडे पे. गुड मॉर्निंग ओम, गुड मॉर्निंग एवरीबडी हु इज ज्वाइनिंग. ऐसा होता है. ऑल राइट, आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे विच इज एल्बर्ट आइंस्टाइन. नाउ एल्बर्ट म्यूनिच में इतना मिजरेबल क्यों फील कर रहे थे, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सबसे पहले एल्बर्ट म्यूनिच में इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि उन्हें स्कूल डिप्लोमा चाहिए था. एल्बर्ट का बहुत ही एनालिटिकल और रैशनल माइंड था और इसीलिए उन्हें रोट लर्निंग बिल्कुल पसंद नहीं थी, रट्टा मारना बिल्कुल पसंद नहीं था. और उन्होंने अपने हिस्ट्री टीचर के साथ बहस की थी जो भी एक बहुत अलग बात थी और वो करते थे ऐसा. और उनके हिस्ट्री टीचर ने उन्हें ये बोला था कि अच्छा वी हैव द आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन, वेरी नाइस वेरी नाइस. अभी सब लोगों को ऐसा लगता था कि वो अपने मॉम डैड का पैसा वेस्ट कर रहे हैं, मतलब वो अपने पेरेंट्स का पैसा वेस्ट कर रहे हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आने वाला. इसीलिए सब लोग उन्हें पनिशमेंट्स पे पनिशमेंट्स दिया करते थे. ये रीज़न था कि एल्बर्ट बहुत ज़्यादा मिजरेबल फील करते थे, उन्हें स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था. उनका रूम भी बहुत ज़्यादा अगली था, वहाँ पे कोई कंफर्ट नहीं था, बहुत गंदा फूड था. इनफैक्ट लैंड लेडी जो थी वो भी बहुत गंदी तरीके से इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखती थी, अपने बच्चे को मारती रहती थी और उनका हस्बैंड पी के आता था फिर वो उनको मारता था. सो और इनफैक्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन को एक ही चीज़ थी जो बहुत अच्छी लगती थी पढ़ाई के अलावा, विच वॉज म्यूज़िक. वो उन्हें म्यूज़िक भी प्ले नहीं करने देती थी. एंड यही रीज़न था कि वो बहुत मिजरेबल फील करते थे म्यूनिच में. ऑल राइट, हाय श्रुति, हाय शिवराम, हाय. ऑल राइट, कॉमेंट ऑन द रोल ऑफ यूरी एज डिस्क्राइब्ड इन दी एक्सट्रैक्ट. एक्सट्रैक्ट नहीं है, रोल बताते हैं हम यूरी का. यूरी उनका बेस्ट फ्रेंड था. यूरी ने एल्बर्ट को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है. वो डेफिनेटली उनका एक फ्रेंड, फिलोसोफर एज वेल एज गाइड था. यूरी ने उन्हें हेल्प किया वो सर्टिफिकेट लाने के लिए जिससे उन्हें स्कूल से छुटकारा मिल सकता था. यूरी ने एल्बर्ट को बताया कि उसको याद कराता रहता था टाइम टू टाइम कि मैथमेटिक्स टीचर से जाओ, मतलब हर चीज़ को. वैसे तो लास्ट में उन्होंने ये भी याद कराया कि तुम्हें मैथमेटिक्स टीचर से सर्टिफिकेट ऑफ रिकमेंडेशन लेना है तो उसको बिल्कुल मत भूलना. इसके साथ साथ में यूरी डेफिनेटली इतने अच्छे से जानता था एल्बर्ट आइंस्टाइन को कि वो बोलता था कि तुम झूठ बोलने की कोशिश मत करना, तुम वर्ल्ड के सबसे खराब लायर हो, तुम सबसे खराब झूठे हो, तुम्हारा झूठ मैं पकड़ लूंगा, कोई भी पकड़ लेगा फॉर दैट मैटर. एल्बर्ट यूरी से मिले थे जब वो म्यूनिच छोड़ के जा रहे थे और यूरी था जिसको छोड़ के जाने का दुख था एल्बर्ट को, अदरवाइज म्यूनिच में उनके लिए कोई नहीं था. हाय पारुल, गुड मॉर्निंग शिवानी. हाँ, बड़े बेकार झूठे थे वो. हाय चंदन, उनको बिल्कुल अच्छी तरीके से झूठ बोलना नहीं आता था, इसीलिए यूरी ने उन्हें बता दिया था कि प्लीज आप झूठ बोलना ही मत. आइंस्टाइन के कैरेक्टर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो वी हैव कि आइंस्टाइन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे ऑल टाइम के. हाय सत्यम. एज अ यंग स्टूडेंट आइंस्टाइन में जीनियस था, मतलब जो चीज़ उनका मैथमेटिक्स टीचर ये बोलते थे कि थोड़े टाइम में तुम मुझे पढ़ा दोगे. सो बेसिकली वो एक जीनियस थे. बट उन्हें वो चीज़ें पसंद नहीं थी जो कि बुक्स में मिल सकती थी. उन्हें लगता था कि कोई चीज़ ऑलरेडी जो बुक में है उसको पढ़ने का क्या मतलब है. एंड इसीलिए वो अपने हिस्ट्री टीचर और बाकी सबसे लड़ते रहते थे. वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डेड थे. उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो किसी के साथ में घुमा फिरा के बात करे, वो सीधी बात किया करते थे. यूरी डेफिनेटली यूरी उनको वर्ल्ड का एक बहुत ही ऑनेस्ट इंसान बुलाती थी, वर्ल्ड का वर्स्ट लायर कह के बुलाता था. बोलता था कि तुम वर्ल्ड के सबसे खराब झूठे हो, दैट मीन्स तुम बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो. एल्बर्ट आइंस्टाइन को म्यूज़िक भी बहुत ज़्यादा पसंद था. उन्हें बिल्कुल भी वायलेंस और अनहैप्पी मोमेंट्स, डोमेस्टिक वायलेंस और ये सब कुछ पसंद नहीं था. ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं कि एल्बर्ट के कैरेक्टर के बारे में जो हमें चैप्टर में देखने को मिलेगी. इसके बाद में अगर हम देखें तो वी हैव ओके, एक मिनट. नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है कि किस तरीके से अच्छा ये हाँ, मदर्स डे.
नेक्स्ट चैप्टर हमारा मदर्स डे है। सो मदर्स डे के बारे में हमें यहाँ पे देखना है। एग्जैक्टली देवेंद्र, बट क्या करें। सो मदर्स डे में हम देखें तो यहाँ पे थीम कैसा है। एक्चुअली मदर्स डे में हमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हाउसवाइफ्स होती, जो हाउसवाइफ्स होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है फैमिली का, एज अ मदर, वाइफ, एज वाइफ। बट उनका खुद का लाइफ जो है वो हमेशा हम लोग भूल जाते हैं कि उनकी खुद की भी एक लाइफ है। हम उनको एक अनपेड डोमेस्टिक सर्वेंट के जैसे ट्रीट करते हैं। कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम पोलाइटली उनसे बात करें या उन्हें थैंक यू बोले हर एक चीज़ के लिए, क्योंकि वही वो चाहती है ना एट द एंड ऑफ द डे। सो यहाँ पे कहानी है मिसेस पियर्सन की, जिनको उनकी फैमिली बिल्कुल अच्छे से ट्रीट नहीं करती। मिसेस पियर्सन अपनी फैमिली के लिए क्या कुछ नहीं करती हैं, लाइक वो हर कुछ करती हैं अपनी फैमिली के लिए, बट उनकी फैमिली उन्हें एक बार भी अप्रिशिएट नहीं करती है, एक बार भी ऐसा फील नहीं करवाती है कि एक वांटेड फील नहीं करवाती है, उनको इम्पोर्टेंस नहीं देती है फैमिली में। एंड ये है पूरा प्ले का थीम। अगर हम एनी पियर्सन की बात करते हैं, जो मिसेस पियर्सन है, तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छी हैं और बहुत लाइट है, बहुत फ्लरिड है, बहुत बहुत आराम से धीरे धीरे से बोलती है, अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से बहुत अच्छे से बात करती है, और इनफैक्ट बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करती, और इसीलिए कोई बात जब उनको उनकी पसंद भी नहीं आती है फिर भी उनकी वो बात मानती है हमेशा। उनके लिए वो इतनी ज़्यादा टेंडर हार्टेड, इतनी केयरिंग, इतनी अफेक्शनेट है अपनी फैमिली को लेके कि उनके लिए वो पूरे दिन काम करती रहती है, और वो लोग उन्हें अकेले छोड़ के चले जाते हैं और वो पूरे दिन घर में अकेली रहती है, सिर्फ उनका काम करती हैं और अकेली रहती है। ये दो ही चीज़ें जो वो करती हैं। The shock treatment makes the thoughtless and selfish persons realize the real position of lady of the house. ये एक्चुअली एक स्टेटमेंट जो है डेफिनेटली बहुत अच्छी स्टेटमेंट है। ये मिसेस फिट्जराल्ड के बारे में बताती हैं। वो बताती हैं कि आपको ना थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको ना थोड़ा सा कोशिश करना पड़ेगा कि आपको जो चाहिए वो आप बोल सको, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप जब तक बोलते नहीं हो ना, सामने वाले को पता भी नहीं चलता है। एंड ये रीज़न है कि मिसेस फिट्जराल्ड का मानना है कि जितना ज़्यादा आप उन्हें ये चीज़ बताओगे कि आप कौन हो और आप उनके लिए क्या करते हो, उतना बेटर है। नहीं तो वो लोग बिल्कुल भी आपको ट्रीट ही नहीं करेंगे एज इफ आपका कोई वैल्यू है। एंड ये रीज़न है कि मिसेस फिट्जराल्ड एक एक करके, चाहे सिरिल हो, चाहे डोरिस हो, चाहे जॉर्ज हो, उनको एक सबक सिखाती है मिसेस पियर्सन बन के, और उन्हें बताती है कि उनकी मॉम की क्या वैल्यू है उनकी लाइफ में। मिसेस फिट्जराल्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरे प्ले में। सो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट राइट अ नोट ऑन द रोल ऑफ मिसेस फिट्जराल्ड इन द प्ले। उनका किस तरीके से उन्होंने पर्सनालिटीज़ को एक्सचेंज किया, किस तरीके से उन्होंने एक सबक सिखाया सिरिल को, डोरिस को और जॉर्ज को, किस तरीके से उन्होंने बताया कि उनकी मॉम्स, उनकी वाइफ्स किस तरीके से पीछे रह के और सब कुछ संभालती हैं। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो उन्होंने प्ले किया है। अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको मतलब एक बहुत ही ह्यूमरस प्ले भी ये देखने को मिलेगा। जब मिसेस फिट्जराल्ड जॉर्ज पियर्सन की बेइज्जती करती हैं, उन्हें पॉम्पी ऑम्पी बुलाती हैं और बताती हैं कि किस तरीके से तुम पे लोग हंसते हैं। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर किसी की भी बेइज्जती करती हैं और उन्हें बताती हैं कि कैसा लगता है जब कोई एक इंसान आपको वैसे ट्रीट नहीं करता जैसे आप चाहते हो। तो वो बहुत ज़्यादा ह्यूमर लेके आता है प्ले में। ये भी एक क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। अगर हम लोग एंडिंग की बात करें मदर्स डे की, तो डेफिनेटली एंडिंग काफ़ी अच्छी है। एंडिंग मिसेस पियर्सन के लिए बहुत अच्छी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बेचारी हमेशा इन लोगों के बारे में सोचती रहती है, तो मिसेस पियर्सन को फाइनली चांस मिलता है कि उनके लिए कुछ हो, एंड दैट इज़ वाई वो जो हमेशा से करना चाहती थी, वो रमी खेलना चाहती थी फैमिली के साथ, वो चाहती थी कि उनके लिए डिनर रेडी रहे, वो उनके लिए फाइनली होता है। सो येस, दैट्स इम्पॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू द लास्ट चैप्टर जो कि इसका है, वी हैव द बर्थ इज द लास्ट चैप्टर। नाउ बर्थ की अगर हम बात करते हैं तो बर्थ भी बहुत इमोशनल और अच्छा चैप्टर है। सबसे पहले तो क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जा सकता है कि एंड्रयू मैनसन को हम क्यों बुलाए थे, लाइक क्यों एंड्रयू मैनसन आए थे और उन्होंने कैसे रिएक्ट किया था इस पे। एंड्रयू मैनसन अभी बस अपना मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट उन्होंने किया था और उन्हें सुजैन मॉर्गन के लिए बुलाया गया था, जो अपने पहले चाइल्ड को एक्सपेक्ट कर रही थी। एंड दे वर बीइंग लाइक, जो सुजैन और जो है, दे वर बीइंग मैरिड फॉर नियरली 20 ईयर्स, एंड ये चाइल्ड उनके लिए बहुत मैटर करता था।
उनका जो हस्बैंड है जो मॉर्गन, वो बेचारा बाहर खड़ा था क्योंकि ना उससे हो नहीं पा रहा था, वो नहीं देख सकता था अपनी वाइफ को पेन में। सो वो बाहर था और जैसे ही एंड्रयू को वहाँ पे बुलाया, एंड्रयू अपने बारे में पूरा भूल गए। एंड्रयू ने अभी अभी अपने गर्लफ्रेंड से, क्रिस्टीन से लड़ाई की थी। वो क्रिस्टीन से बहुत प्यार करते थे और वो क्रिस्टीन के बारे में ही सोचे जा रहे थे। बट जैसे ही सुजैन मॉर्गन का पूरा केस उनके सामने आया, वो एक बार के लिए क्रिस्टीन को पूरी तरीके से भूल गए। उन्होंने थोड़े थोड़े टाइम में उनको एग्जामिन किया और उसके बाद में फाइनली उस बच्चे को वो लेके आए दुनिया में। जब उन्हें पता चला कि वो बेबी ऑलमोस्ट डेड है, तो उन्होंने पूरी कोशिश की, रिगार्डलेस ऑफ फिजिकल टायर्डनेस और मेंटल टेंशन, उन्होंने अपनी ड्यूटी सबसे पहले निभाई थी। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ एफर्ट्स मेड बाय एंड्रयू टू रिवाइव द स्टिल बॉर्न बेबी। आज जब उन्होंने बेबी को देखा तो उन्हें रियलाइज हुआ कि बेबी मरा नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ अभी वाइट है, अभी भी उसका स्किन सॉफ्ट है। तो उन्हें पता चल गया था कि बेबी को ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो रही है एंड दैट इज वाई वो ऐसा है। सो अभी ना उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ बकेट्स मंगवाए और उन बकेट में एक में बहुत गर्म पानी था और एक में बहुत ठंडा पानी था। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको ऐसे पुट करके बार बार ऐसे जगल किया और उन्हें लगा कि जगल करने से ही सही हो सकता है कि वो वापस से रिवाइव हो जाए। इसके बाद में उन्होंने एक टाल लिया और टाल लेके भी उसको ऐसे थोड़ा सा रब करने की कोशिश की कि वापस से उसके अंदर सांसें आ सके, बॉडी फंक्शन करे। एंड उनके ये एफर्ट्स रियली काम किए। जब वो बेबी उसके छोटू सा बबल आया नॉस्ट्रल में से, क्योंकि उसको कोल्ड हो चुका था पानी की वजह से, गर्म और ठंडे पानी की वजह से उसकी पेल स्किन फाइनली पिंक हो गई थी और अभी उसके लिम्स ऐसा नहीं लग रहे थे कि बोनलेस है, एकदम से नॉर्मल बेबी जैसा वो हो गया था। एंड फाइनली वो बेबी रोया एंड दैट्स हाउ वो अलाइव हो गया। एंड दैट वाज, आई डोंट नो इफ यू कैन फील इट और नो, द बेस्ट मोमेंट फॉर एंड्रयूज लाइफ। अगर हम देखें एंड्रयू के इमोशनल, मेंटल और फिजिकल स्टेट को बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी में, तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ना इमोशनली, बहुत ज़्यादा इमोशनली टायर्ड थे, अपसेट थे, फिजिकली टायर्ड और अपसेट थे। उनको ना अभी क्रिस्टीन के साथ में अभी उनकी एक लड़ाई हुई थी। क्रिस्टीन वो लड़की थी जिससे वो बहुत प्यार करते थे। उनके थॉट्स बहुत ज़्यादा हैवी थे, बहुत ज़्यादा अजीब सा उन्हें फील हो रहा था। ये एपिसोड जो है, ये एपिसोड डेफिनेटली उनकी लाइफ में आया जस्ट बिफोर वो आए थे सुजैन के घर पे। उन्हें ऐसा लगता था कि वो मैरिज को लेके बहुत ज़्यादा डबल थॉट्स लेके आ रहे थे। उनके दिमाग में सारी चीज़ें आई एंड सारे केसेस आए डिफरेंट डिफरेंट लोगों के मैरिज को लेके कि वो उनकी मैरिजेस कैसी हैं, कुछ की मैरिजेस फेल हैं, कुछ की मैरिजेस बहुत अच्छी हैं, इन सारी चीज़ों को लेके एट द एंड ऑफ द स्टोरी हमें पता चलता है कि किस तरीके से उन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया और अपना ड्यूटी निभाया। एंड ये जो सेंस ऑफ अचीवमेंट उन्हें मिला था, ये सेंस ऑफ अचीवमेंट से वो भूल गए थे कि वो क्रिस्टीन से लड़के आए थे या उनकी लाइफ थोड़ी सी अजीब सी थी। बेबी को माउथ की तरफ से डुबाया था, माउथ की तरफ से पूरा जगल किया था, उसको ऐसे धो दिया था पानी में। ऑल राइट, इसके बाद में अगर हम देखें तो एंड्रयू मैनसन का अगर हम एक कैरेक्टर बनाएं या एक इम्प्रेशन फॉर्म करें तो वो डेफिनेटली अभी अभी डॉक्टर बने हैं और उनका हार्ट लव से भरा हुआ है, क्योंकि वो क्रिस्टीन से बहुत प्यार करते हैं और वो नहीं चाहते हैं क्रिस्टीन से लड़ना। इसके बाद में हमें पता चलता है कि वो थोड़े थोड़े टाइम पे सोचे जा रहे हैं बार बार मैरिज को लेके कि उन्हें अपनी लाइफ में अभी क्या करना चाहिए। बट वो इतने मेच्योर हैं कि वो अपनी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ को अलग रखते हैं और फाइनली उनके सामने उनकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि उन्हें अभी उस बेबी को और उस ममा को बचाना था, ना कि वो क्रिस्टीन के बारे में सोच सकते थे। जो कि ये बताता है कि वो कितने ज़्यादा अलर्ट हैं, कितने अच्छे डॉक्टर हैं। साथ ही साथ में उनका एक टेंडर हार्ट भी है, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि वो बेबी में सांसें नहीं हैं, तो उन्हें ऐसा लगा कि इनका क्या होगा। एक डॉक्टर इमोशनली जब कनेक्ट होता है दैट मीन्स वो बहुत अच्छा इंसान भी है, एक डेडिकेटेड डॉक्टर होने के साथ में। तो वो इमोशनली कनेक्ट हुए थे सुजैन के साथ में। उन्हें ऐसा लग रहा था कि यार अगर सुजैन को ये बेबी नहीं मिला तो सुजैन का क्या होगा। सो दैट वाज समथिंग जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनके कैरेक्टर स्केच में। इसके बाद में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं सिल्क रोड से। सिल्क रोड इज़ द ओनली चैप्टर लेफ्ट नाउ। सिल्क रोड जो है
ये एक बहुत अच्छा चैप्टर भी है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, बट डेफिनेटली अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो बोरिंग भी है। आप मेरा वीडियो देख सकते हो जाके, तो शायद आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे चैप्टर्स देखने को मिलते हैं अबाउट निक मिडल्टन। निक मिडल्टन जो है उनके कैरेक्टर स्केच पे, कि वो किस तरीके के इंसान थे, और आपको बताना पड़ेगा कि वो कितने ज़्यादा ब्रेव थे, कितने ज़्यादा डिटर्मिन्ड थे किसी चीज़ को करने के लिए। उन्होंने किस तरीके से अपने ऑड्स को जो उनकी लाइफ में आए जब वो इल हो गए थे, और उन्हें दिख रहा था कि सामने स्नो है एंड ऑल दैट, उसको फेस किया। सो ये आप लिख सकते हो। इसके बाद में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है निक मिडल्टन के डार्चिन वाले पूरे एपिसोड पे, कि जैसे ही वो डार्चिन आए वो कितना ज़्यादा थक गए थे, उन्हें नींद आ रही थी बट वो सो नहीं पा रहे थे क्योंकि प्रेशर की वजह से उनके नॉस्ट्रल्स ब्लॉक हो गए थे। वो जब भी सोने की कोशिश करते थे उन्हें ऐसा लगता था कि उनका चेस्ट हैवी हो रहा है, और अगर वो सो गए तो वो उठ ही नहीं पाएंगे। सो ऐसा हुआ, रात भर वो सोए नहीं, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग उन्हें मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, उन्हें दवाइयाँ दिलवाई गई। इसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है उनके पूरे ट्रैवल एपिसोड के बारे में जो होर में हुआ था ना। होर वॉज एक छोटू सा टाउन था। निक मिडल्टन ने ये बताया कि होर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था क्योंकि वहाँ पर वेजिटेशन नहीं था, और वहाँ पर एक इकलौता कैफ़े था जहाँ पर वो बैठे हुए थे। एंड जैसे लोगों ने लेक के बारे में और इन सब के बारे में बात की थी, वैसा तो वो बिल्कुल भी नहीं था। तो उन्होंने अपने वहाँ के एपिसोड के बारे में बताया था, एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेगा। सो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन है जो कि इससे बन सकता है। लास्ट में इसमें क्वेश्चन बन सकता है नोरबू और निक मिडल्टन के एनकाउंटर के बारे में, कि दोनों कैसे मिले थे ना एक साथ। सो नोरबू और उसके बारे में कि डार्चिन में जब वो एकदम होपलेस फील कर रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो कोरा पे अकेले नहीं जा सकते हैं, पिलग्रिम है नहीं यहाँ पे, और लोगों से वो बात कर नहीं सकते हैं कि लोग कब आएंगे, क्योंकि लैंग्वेज वो उनकी समझेंगे नहीं। तो ये जब उनको लग रहा था, तो ये टाइम पे उनको नोरबू मिला, और नोरबू उनके जैसा ही था। नोरबू से वो कनेक्ट कर पा रहे थे, नोरबू से वो बात कर पा रहे थे, दोनों खूब हंसे, दोनों ने कोरा को प्लान किया। सो डेफिनेटली नोरबू वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सो यस, ये क्वेश्चन है जो सिल्क रोड से बन सकते हैं। सो ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने आज देखे हैं। ये क्वेश्चंस के साथ में हमने चैप्टर्स को एक बार रिवाइज कर लिया है। अभी हम लोग को आइडिया लग गया है कि कौन कौन से चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आपको मुझे ज्वाइन करना है प्लस पे, और अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो, ये सारे क्वेश्चंस को डाउनलोड करना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, एक बार लिख के दिखाना चाहते हो कि कैसे आप लिख सकते हो इन्हें, आप उन्हें चेक करना चाहते हो, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो प्लस या आइकॉनिक पे। मेरा कोड है SDC18 या SDC लाइव भी आप यूज़ कर सकते हो। इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और इस 10% डिस्काउंट के साथ में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। ये तो स्टार्टिंग है, क्योंकि जो लेवल ऑफ कंटेंट आपको प्लस प्रोवाइड करता है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप लाइव पढ़ सकते हो, आप एक सब्सक्रिप्शन से सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो। सारे एजुकेटर्स आपको मिलते हैं एक एक सब्जेक्ट के। तो अगर आप इंग्लिश के एजुकेटर्स की बात करोगे तो सिर्फ मैं नहीं मिलूंगी आपको, और भी बहुत सारे एजुकेटर्स मिलेंगे जो आपके अकॉर्डिंग पढ़ाते हो। हर एक डिफरेंट स्टाइल का एजुकेटर वहाँ पे है, तो जो स्टाइल आपको अच्छी लगती है पढ़ने की आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पे पूरा सिलेबस हम कवर करवा के देते हैं, तो आप कभी भी ज्वाइन करो तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं। बहुत बार यूट्यूब में स्पेशल में आपके डाउट्स हम मिस कर देते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं। प्लस में ऐसा नहीं होता है, प्लस में आपके डाउट्स का पूरा ध्यान रखा जाता है। हर तीसरी क्लास के बाद फोर्थ क्लास में डाउट लिए जाते हैं। लाइव टेस्ट सीरीज होती है, स्टडी मटेरियल मिलता है। आप सोचो ये एक मटेरियल है जो यूट्यूब पे है, तो इसमें क्या मटेरियल होता होगा जो मैं प्लस पे प्रोवाइड करती होंगी। सो वो आप डाउनलोड कर सकते हो। आंसर राइटिंग सेशंस, मेंटरशिप एंड गाइडेंस मिलता है। मेरा एक बहुत ही अमेजिंग कोर्स है जो कि फरवरी में आने वाला है, और वो उसके अंदर हम लोग बहुत सारे, हर एक चैप्टर के बहुत सारे MCQs करने वाले हैं, टिपिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करने वाले हैं, एंड डेफिनेटली आंसर्स कैसे लिखते हैं ये भी सीखने वाले हैं। सो यू कैन ज्वाइन मी देयर। साथ ही साथ में आप डेली प्रैक्टिस सेक्शन का पार्ट बन सकते हो। आपने एक चैप्टर पढ़ा एंड आपने प्रैक्टिस किया। आप मॉक टेस्ट सीरीज का पार्ट बन सकते हो, तो रेगुलर बेसिस पे आपके टेस्ट होते रहेंगे।
लाइव क्विजेस किसी भी आवर में आप अनअकैडमी ऐप खोलो, यूल फाइंड लाइव क्विजेस। आस्क अ डाउट वाला फीचर है, अपना डाउट फीड करो एंड आपको उसका रिप्लाई मिल जाता है। एमसीक्यू टेस्ट सीरीज डेली बेसिस पे होती हैं। सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इधर उधर सब जगह से सिर्फ सुनते हो, आप लिख के नहीं देखते हो, और एमसीक्यू से पता नहीं चलता है चैप्टर कितना क्लियर हुआ है। तो आप सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज दे सकते हो, जो कि हर वीकेंड होती है, सैटरडेज एंड संडे जैसे आज भी है, और उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। और उसके बाद में आपको उस पर पर्सनलाइज कमेंट्स मिलते हैं, आपको पता चलता है करेक्ट आंसर क्या था, इनकरेक्ट आपने क्या लिखा, ये सब कुछ। अगर आप चाहो तो आप आइकॉनिक भी ज्वाइन कर सकते हो, इसमें आपको और ज़्यादा पर्सनल अटेंशन मिलता है, पर्सनल मेंटर के थ्रू आप वीडियो कॉल के थ्रू अपने डाउट सॉल्व करवा सकते हो, आपको वीकली रिपोर्ट दी जाती है, आपके पेरेंट्स के डाउट क्लियर किए जाते हैं, आपको एक स्टडी प्लानर बना के दिया जाता है, और आपको प्लस भी पूरा यहीं पे मिल जाता है। कोड नहीं भूलोगे, इट इज़ SDC18 या SDC लाइव, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। यही कोड से आप क्या कर सकते हो, स्पेशल क्लास को अनलॉक भी कर सकते हो। स्पेशल क्लास मेरी फ्री क्लासेस हैं, और अनअकैडमी पे ये फ्री क्लासेस आपको बहुत सारे एजुकेटर्स की देखने को मिलेगी। आज बहुत सारी स्पेशल क्लासेस हैं, सो स्पेशल क्लासेस को अनलॉक करने के लिए आप ये कोड लगाओगे तो ये स्पेशल क्लास फ्री हो जाएंगी, आप आराम से उन्हें देख पाओगे। अगर आप प्लस लेते हो और अगर आप सजेशन चाहते हो कि आपको कितने मंथ का पैकेज लेना चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप 12 मंथ्स का पैकेज ले सकते हो। आई नो आपको ये थोड़ा क्रेजी लगेगा, बट अगर आप 12 मंथ्स का पैकेज लेते हो तो 13,500 के अंदर आपको पांचों सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं, और इन पांचों सब्जेक्ट्स के साथ सारे एजुकेटर्स, सारा कंटेंट मिल जाता है। और अभी अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो अभी आप पढ़ सकते हो 11th को, अपने अच्छे फाइनल्स दे सकते हो, और फिर 12th कैरी ऑन कर सकते हो। तो 13,500 में आपने 11th भी कर लिया, लास्ट में ही किया चाहे, बट कर लिया, और आपका 12th भी इंश्योर हो गया सारे सब्जेक्ट्स और सारे एजुकेटर्स के साथ में। और आपको मिलेगा फर्स्ट मूवर एडवांटेज। एक चीज़ मैं और आपको बता देती हूँ, हमारा एक बहुत अमेजिंग बैच आ रहा है, एंड वो बहुत अमेजिंग बैच है ब्रिज वाला बैच, लाइक ब्रिज बैच जो है, ब्रिज कोर्स। ये कोर्स 2 महीने के लिए चलेगा, राइट आफ्टर आपके एग्जाम्स कंप्लीट होते हैं। ये कोर्स के अंदर हम आपको 11th से 12th के साथ लिंक करेंगे। बहुत अच्छे एजुकेटर्स आपको यहाँ मिलेंगे, कॉमर्स के टॉप एजुकेटर्स मिलने वाले हैं। 11th से 12th को लिंक करेंगे। 11th में जो भी आपने पढ़ा है उसको 12th में कैसे यूज करना है वो आपको पता चलेगा। 12th का एक बेस क्रिएट होगा, एंड जब भी आप स्कूल में जाओगे आपको सारी चीज़ों के बारे में पता होगा। ये भी आपको प्लस पे मिलेगा। तो अगर आप प्लस ज्वाइन करना चाहते हो, यू नो द कोड, मेरा प्रोफाइल चेक कर सकते हो, मेरे कोर्सेज चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो वहां जाके आप चेकआउट करोगे तो आपको मेरा प्रोफाइल दिख जाएगा। थैंक यू सो मच इस अमेजिंग सेशन के लिए, वेट करने के लिए। और मैं आपसे मिलती हूँ आज रात को 10:15 पे मेंटी क्विज के लिए। आई विल सी यू गाइस देयर, बाय बाय।